الإسلام والصلاة والسلام على سيدنا محمد نبيه الذي استنقذنا به من عبادة الأوثان والأصنام وعلى آله وأصحابه النجباء البررة الكرام أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين صدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ایک بار محبت سے درود شریف پڑھیں. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله. تھوڑا سا بولیے نا گھسک کے بیٹھے گا. الحمدللہ چھتیس گڑھ مدھیہ تھوڑا سا پردیش کنارے بیٹھو نا، کنارے بیٹھو. کہ اس سرحدی علاقے میں رات کے اس آخری وقت میں اتنا بڑا مجمع، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جو کام آج کل دیہاتوں میں ہو رہا ہے وہ کام شہر میں نہیں ہو رہا ہے. شہروں کے جلسے رات کے 10 بجے ختم ہو جاتے ہیں اور اس دیہات کا جلسہ رات کے 2 بجے جوان نظر آ رہا ہے. اللہ تبارک و تعالی اس علاقے میں خوب برکتیں اور رحمتیں عطا فرمائے. دارالعلوم قادریہ رضویہ شمسیہ کو خوب اللہ عروج اور ترقی عطا فرمائے. جس طرح آپ نے اب تک جلسے کو سنبھالا ہے، اپنے مہمانوں کو سنا ہے، میں امید کرتا ہوں کہ اس آخری مرحلے میں اس فقیر کو بھی آپ غور سے سماعت کریں گے اور دعا تک شریک ہو کر آپ یہاں سے جائیں گے. جلسہ اور جلوس کی جو آخری گھڑی ہوتی ہے وہ دعاؤں کی قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے. پہلے نماز ہوتی ہے، پھر دعا ہوتی ہے. پہلے اللہ کا ذکر ہوتا ہے، پھر دعا ہوتی ہے. جب بھی اللہ سے کچھ مانگنا ہو تو کم سے کم 100 بار درود شریف پڑھیں، 100 بار کلمہ شریف پڑھیں، پھر اس کے بعد دعا کریں. جمعہ کے دن جب خطاب ہوتا ہے تو اس خطبہ جمعہ میں پہلے تسبیح، تحمید اور وعظ اور پھر اخیر میں اللہ سے دعا ہوتی ہے کہ اللہم انصر من نصر دین سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پہلے ذکر الہی، پھر اخیر میں دعا. تو اب تک ذکر الہی ہوتا رہا، وعظ ہوتا رہا اور پھر وعظ ہوگا اور اخیر میں دعا ہوگی. اور جس دعا میں 40-50 مسلمان شریک رہتے ہیں وہ آمین کہتے ہیں، وہ دعا قبولیت سے زیادہ قریب ہوتی ہے. چونکہ جہاں 40-50 مسلمان رہیں ضرور اس میں کوئی اللہ والا ہوتا ہے اور جہاں 40-50 علماء کرام موجود رہیں وہاں ضرور کوئی نہ کوئی قطب ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالی علماء کرام کے سایوں کو ہم سبوں کے سروں پہ دراز فرمائے اور خوب ان کی سرپرستی اور نگرانی میں ہمیں اپنی زندگی کا سفر انجام تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. بڑی خوبصورت نعتیہ شاعری جناب شہباز رضا مودودی خلقتوی صاحب نے سماعت کی. عمر بڑھتی جا رہی ہے اور تجربہ اور کلام میں پختگی آتی جا رہی ہے. دوسرے لوگ ہیں کہ جب عمر بڑھتی جاتی ہے تو ہوش و حواس اس کے گم ہوتے جاتے ہیں، مگر دین کی خدمت اور مصطفیٰ کی جو مدحت کرتا ہے اس کی عمر بڑھتی جاتی ہے، تجربہ بڑھتا چلا جاتا ہے اور ان کا کلام باوزن ہوتا چلا جاتا ہے. تبھی بھائی سے بھی میری ملاقات آج سے 20-25 سال پہلے ہوئی تھی اور اب ان کا قد بھی اونچا ہو گیا ہے ماشاءاللہ. بہت اچھی نقابت ہو رہی ہے اور اس نقابت کے ساتھ ساتھ ماشاءاللہ بڑی اچھی شاعری بھی ہو رہی ہے. ہمارے چترویدی صاحب ماشاءاللہ پیسہ ایک روپے میں دے نہیں پایا، میں انشاءاللہ روم میں جاؤں گا تو پرس سے نکال کر ضرور دے دوں گا. بہت خوشی حاصل ہوئی، بہت اچھی خطابتیں انہوں نے کی ماشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالی ہمارے سارے خطبہ اور شعراء کو سبوں کو خوب ترقی عطا فرمائے. احسان بھائی ہماری شروع میں بہت دیر تک
مائک پہ رہ کے جلسے کو بگڑنے سے بچایا اور ان کا اپنا ایک پڑھنے کا الگ انداز ہے. سب سے بڑی بات ہے کہ آپ نے بھی سننے کا حق ادا کر دیا. سبحان اللہ. ذرا زور سے بولیں سبحان اللہ. ہلکا سے کم کر دیجیے, آواز تھوڑی سی تیز کر دیجیے تاکہ لوگ صاف صاف سن سکیں. آواز اور تیز کریں, تھوڑی سی آواز اور تیز کر دیں. آپ لوگوں نے بھی سننے کا حق ادا کر دیا ماشاء اللہ. ہمارے بہار کے میں بھی جلسے ہوتے ہیں سیمانچل علاقے میں, لیکن تقریر ہوئی لوگ جانے لگتے ہیں, نعت ختم ہوئی لوگ جانے لگتے ہیں. شہباز بھائی کو بھی تجربہ ہوگا کہ نعت خوانی کے بعد لوگ اٹھ کے بھاگنے لگتے ہیں. اور آپ لوگوں نے بتا دیا ہے کہ ہم کسی کالج اور اسکول کے چھیتر چھایا میں نہیں رہتے ہیں, ہم دارالعلوم قادریہ رضویہ شمسیہ کے پڑوس میں رہتے ہیں. سبحان اللہ. سبحان. جہاں مدرسہ ہو, جہاں دینی درسگاہ ہو, وہاں کے لوگوں پہ اس کا اثر ہونا ہی چاہیے. جہاں ڈانس سکھانے کی تربیت گاہ ہوتی ہے وہاں اکثر لوگ ڈانسر ہو جاتے ہیں, اور جہاں کرکٹ کا ٹورنامنٹ ہوتا ہے وہاں اکثر لوگ کھیل اور تماشے کے شوقین اور عادی ہو جاتے ہیں. اور جہاں چٹائی پر بیٹھا کے بچوں کو قال اللہ اور قال رسول کی تعلیم دی جاتی ہو, وہاں عوام الناس میں بھی علم سیکھنے اور سکھانے کا رجحان پیدا ہو جاتا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, صدر اجلاس, خلیفہ عزیز ملت, شیخ الحفاظ حضرت الحاج حافظ شمیم احمد صاحب قبلہ, مسلک اعلیٰ حضرت, علماء اہل سنت, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. آج ہمیں ضرورت ہے نیک لوگوں کی دعاؤں کی, آج ہمیں ضرورت ہے نیک لوگوں کی صحبت کی, آج ہمیں ضرورت ہے خود اپنے گھر کو نیکوں کے قدم سے سجانے کی ضرورت ہے. سر سے لے کے پاؤں تک اتنے گناہ ہو گئے کہ ہم لوگ زندہ ہیں, زمین پر جی رہے ہیں, یہی بہت بڑی بات ہے. ورنہ اللہ کی زمین, اللہ کا آسمان, اللہ کی دی ہوئی فضا, اللہ کی ہواؤں میں سانس لے کر ہم اتنے گناہ کرتے ہیں کہ اسی وقت مجھے زمین کے نیچے دھس جانا چاہیے. چونکہ روزی اللہ کی ہم کھاتے ہیں, پانی اللہ کا دیا ہوا پیتے ہیں. قرآن کہتا ہے قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَعِينٍ. اے حبیب آپ لوگوں سے کہہ دیجئے کہ اگر میں زمین کے نیچے سے پانی غائب کر دوں صبح صبح تو تمہاری نگاہوں کے سامنے بہتا ہوا پانی کا چشمہ کون لائے گا؟ اللہ نے ایک نعمت کا ذکر کیا ہے کہ جس پانی کو پینا تمہاری ضرورت ہے, تمہارے جانور کی ضرورت ہے, تمہارے بادشاہ تمہارے فقیر کی ضرورت ہے. کوئی ہمیشہ دودھ پی کے زندہ نہیں رہ سکتا ہے, پانی سب کی ضرورت ہے. کوئی ہمیشہ ہم سب گولڈ ڈرنک پی کے نہیں زندہ رہ سکتا, پانی اس کی ضرورت ہے. جانور بھی بغیر پانی کے زندہ نہیں رہ سکتا اور انسان بھی نہیں رہ سکتا. بادشاہ چاہے روزانہ وہ انار کا جوس پیئیں, اسے بھی پانی پینا ہے, اور فقیر کو بھی پانی پینا ہے. سب کی ضرورت ہے پانی. اللہ کہتا ہے پانی میرا ہے اور تجھ کو پیدا بھی میں نے پانی سے کیا ہے. وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ, ہم نے ہر جاندار کو پانی سے پیدا کیا ہے. وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِّن مَّاءٍ, اللہ کہتا ہے ہر زمین پہ چلنے والے چوپائے کو اللہ نے پانی سے پیدا کیا. پانی میری پیدائش میں داخل ہے اور زندہ رہنے کے لیے بھی پانی ضروری ہے, اور مرنے کے بعد میری لاش کو نہلانے کے لیے بھی پانی کی ضرورت ہے. اور حضور نے کہا ہے کہ جب قبرستان پہ جاؤ, حدیث پاک کا مفہوم ہے, تو قبرستان پہ پانی چھڑکا جائے, بعد دفن قبر پہ پانی چھڑکا جائے. اس سے یہ دلیل لی جاتی ہے کہ پانی کا مزاج ہے ٹھنڈک پہنچانا. اللہ تبارک و تعالی اس پانی کے چھڑکاؤ کے صدقے میں اس کے لیے جہنم کی آگ کو بجھا دے گا. اسے پانی بہت بڑی ضرورت ہے. قرآن کریم کی آیتوں میں پانی کا بہت ذکر آیا ہے. فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ. انسان کو اپنی پیدائش پہ غور کرنا چاہیے کہ یہ انسان پیدا ہوا کیسے ہے. تو اللہ کہتا ہے ایک پانی کا جمپ کرتا ہوا قطرہ جو باپ کی ریڑھ کی ہڈی اور ماں کے سینے کی ہڈی سے نکلتا ہے,
اسی پانی کے قطرے سے اس انسان کی پیدائش ہوئی۔ ایک جگہ اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صُلَالَةٍ مِّن طِينٍ، ہم نے انسان کو بجتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا ہے۔ وہ مٹی جس کو خوب گوندھا گیا اور پھر وہ مٹی سوکھ گئی تو اس سے بجنے کی طرح آواز آئی، تو ہم نے اس انسان کو اسی بجتی ہی سے پیدا کیا ہے۔ قرآن شریف میں کئی جگہوں پہ اس طرح کا بجتی مٹی، بدبودار مٹی کا گارا، پانی کا قطرہ، اور وہ پانی جو کودتا ہوا نکلتا ہے، اس سے میں نے پیدا کیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے یہ کہنا چاہتا ہے کہ تو اپنی پیدائش پہ بھی غور کرنا اور تو اپنی زندگی پہ بھی غور کرنا کہ زندہ رہنے کے لیے پانی ضرورت ہے تیری۔ اگر میں زمین کے نیچے سے پانی غائب کر دوں تو تمہارے لیے پانی کون لا کے دے گا؟ اگر میں زمین سے فصلیں نہیں پیدا کروں تو تجھ کو روزی کون دے گا؟ جس طرح زمین مر جاتی ہے اس کو زندگی دینے کے لیے اللہ آسمان سے پانی برساتا ہے۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا، ہم نے آسمان سے برکت والا پانی اتارا۔ جب زمین مر جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان سے پانی گرا کر اسے زندہ کرتا ہے، پھر وہاں سے فصلیں پیدا ہوتی ہیں جس کو کھا کے انسان اور جانور زندہ رہتے ہیں۔ تو اللہ نے ہماری روزی کے بارے میں کہا فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، A man should consider in his food، آدمی کو اپنی خوراک پہ غور کرنا چاہیے، چونکہ آج زمین گھمنڈ سے بھر گئی، آج ہماری زندگی بیراہ روی سے بھر گئی، غور ہی کرنا ہم نے چھوڑ دیا کہ جس زمین پہ میں چلتا ہوں اگر نافرمانی بڑھی تو وہی زمین میری قبر بن جائے گی، میری کاریں زمین میں دھس جائیں گی، میرے بڑھتے ہوئے قدم زمین میں دھس جائیں گے۔ اکثر عذاب اللہ کا صبح کے وقت میں آتا ہے، جب بندہ رات بھر گہری نیند لے کے صبح سویرے اٹھتا ہے تو سوچتا ہے کہ ہم جیت گئے، یعنی کل دن بھر میں کھٹا تھا، کام کیا تھا، دکان میں تھا، آفس میں تھا، رات میں 8 گھنٹے کی گہری نیند لیا ہوں، اب میں فریش ہوں، تازہ ہوں، اب میں آج کا دن مزے کے ساتھ گزاروں گا، جس وقت اس کا موڈ فریش رہتا ہے 8 گھنٹہ سونے کے بعد۔ اکثر عذاب اسی وقت میں آیا، صبح کے وقت میں۔ چنانچہ یونس علیہ السلام کی قوم پر جب عذاب آیا تو صبح کے وقت میں بالکل آسمان کالے بادل سے بھر گیا، اب ایسا لگا کہ جیسے آگ برس جائے گی اور پوری آبادی کو آگ کھا جائے گی۔ اسی طرح دوسری قوموں پہ آندھی اور طوفان کا جو عذاب آیا وہ بھی صبح کے وقت میں، اور ابھی ایک تازہ عذاب آیا ہے ترکی میں، 10 منزلہ مکان لوگوں نے اپنی گاڑی کمائی سے بنایا تھا، اور ایک مکان بنانے میں کتنے روپے لگتے ہیں وہ شاعروں اور خطیبوں اور مقرروں سے بھی پوچھئے۔ 25 سال آپ نے نعت پڑھی، 25 سال آپ نے خطاب کیا، روزانہ 10,000 20,000 آپ نے لفاف لیا، کیا کیا؟ تو جواب ہوگا بس صرف ایک چھوٹا سا گھر بنا لیا، بس زندگی کی ساری کمائی ایک چھوٹے سے گھر۔ ہمارے لوگ سعودی عرب میں جا کے کماتے ہیں 10 20 سال تک، وہاں کوئی اونٹ چراتے ہیں، کوئی ہاسپٹل میں کام کرتے ہیں، کوئی فیکٹری میں رہتے ہیں۔ ان سے کہیے کہ 20 سال آپ وطن سے بے وطن رہے، کیا کیا؟ پیسہ بس ایک چھوٹا سا گھر بنا۔ اور آپ نے ٹیچنگ جاب کی، 25-30 سال آپ پڑھے لکھے، اور پھر 30 سال آپ نے نوکری کی، روزانہ آندھی آئے، طوفان آئے، کچھ بھی ہو، اسکول جانا، 5 گھنٹے پڑھانا، آپ ڈی ایم بن گئے۔ ہندوستان کے سب سے ٹاپ کوالٹی کی سروس ہے وہ جاب ہے ڈی ایم بننا، اس سے بڑا اور کوئی جاب ہندوستان میں نہیں ہے۔ پریسیڈنٹ ہیں وہ بالکل اپاہج اور گونگا ہے، پردھان منتری وہ حاکم ہے پورے ملک کا، چیف منسٹر حاکم ہے ایک اسٹیٹ کا، مگر ایک ڈسٹرکٹ کا مالک ڈی ایم ہوتا ہے۔ پردھان منتری آج ہیں، کل الیکشن ہار گئے پیویلین لوٹ گئے، چیف منسٹر ہیں آج کرسی پر ہیں، کل الیکشن ہار گئے، پارٹی ہار گئی، چلے گئے پیویلین میں۔ لیکن ڈسٹرکٹ کا جو ڈی ایم ہے وہ ڈسٹرکٹ کا مالک ہے تو ہے، اس کو ریٹائرمنٹ تک رہنا ہے۔ آپ سی ایم ہیں، آپ ہم کو ہٹا دیں گے یہاں سے، اس ضلع سے ہٹا دیں گے اس ضلع میں چلے جائیں گے، کٹیہار سے ہٹا دیا پورنیہ چلے گئے، پورنیہ سے ہٹایا سکریٹریٹ چلے گئے۔ ڈی ایم اصل میں ڈسٹرکٹ کا مالک ہوتا ہے۔
हाई क्लास का जॉब है, पूरे डिस्ट्रिक्ट का मालिक है वो। लेकिन 30 साल 18-18 घंटे पढ़ के उसने जॉब लिया। और जॉब में भी कभी कभी जूता पहन के उसको रात भर सोना पड़ता है, जब डिस्ट्रिक्ट में कहीं कोई आफत आती है, कहीं जलजला आता है, कहीं सैलाब आता है, कहीं आंधी तूफान में पूरा गांव जल जाता है, कि डीएम को सर का दर्द होता है, जूता पहने सोता है। किस वक्त कहां से फोन आ जाए सीएम का और पीएम का, नौकरी खतरे में पड़ जाए, परेशान रहता है। तो इसका मतलब है कि पढ़ने के जमाने में 30 साल खूब पढ़ना, 18 घंटे जाकर खाना पीना सोना सबको त्याग देना है, तब जाके हाई क्लास का जॉब मिलता है। और जॉब मिलने के बाद रिटायरमेंट तक 24 घंटे की नौकरी है। अपने डेरे में सोए हैं, फिर भी दिमाग में टेंशन है कि सीएम का फोन आ गया, विधायक का फोन आ गया, साहब एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का फोन आ गया, हमेशा टेंशन में रहते हैं। जिंदगी हो गई 60-62 साल की, रिटायर कर गए, अब मौत का इंतजार है। ये है जिंदगी, मुख्तसर सी जिंदगी की कहानी। तो आप डीएम बने, 30 साल आपने जॉब किया, क्या किए पैसे आपने? छोटा सा घर बना लिया, एक गाड़ी खरीद ली, एक मकान बना लिया। यही है जिंदगी का मकसद, एक मकान। और उस मकान की हैसियत क्या है? उस मकान की हैसियत यही है कि अभी कुछ दिन पहले मुरादाबाद में एक घर में शादी थी, और उस शादी में दूर दराज से रिश्तेदार आए थे। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी, उसके 7 लोग खानदान के उसी रूम में जलकर मर गए। यह है मकान की हैसियत। अभी सीमांचल इलाके में सैलाब के मौसम में कभी कभी खूब जबरदस्त बारिश हुई, सैलाब आता है, 1-2 घर नहीं बल्कि गांव का गांव महानंदा में गुम हो जाता है, जमीन कट जाती है। यह है मेरे मकान और मेरी गाढ़ी कमाई से जो घर में बनाता हूं उसकी हैसियत है। तुर्की का फन्ने तामीर बहुत मशहूर है। गुंबद खजरा, मस्जिद नबवी और मस्जिद हराम की जो तामीर है वो तुर्की के लोगों ने की है। वहाँ का फन्ने तामीर बहुत जबरदस्त है, पूरी दुनिया के लोग उसको रोल मॉडल मानते हैं। और बहुत सारे लोग तुर्की घूमने जाते हैं ताकि वहाँ के मकान को देखें, वहाँ के आर्किटेक्ट के कल्चर को हम देखें और नक्काशी को देखें। बहुत जबरदस्त फन्ने तामीर है तुर्की का, और बहुत खूबसूरत शहर है। वहाँ की सड़कें, वहाँ के बागात, वहाँ के मकानात की तामीर की तरतीब और नालियाँ, हर एतबार से एक प्लान्ड सिटी है वहाँ का। जिस तरह हिंदुस्तान में 2 शहर हैं, एक भुवनेश्वर है और एक वहाँ पंजाब में एक शहर है पंजाब का, वे 2 शहर हैं। ये दोनों शहर अंग्रेजों ने प्लान से बसाया है। भुवनेश्वर पहले नहीं था, पहले वो कटक उड़ीसा की राजधानी, अंग्रेजों ने उसे बसाया। इसलिए वहाँ की सड़कें, वहाँ का एयरपोर्ट, वहाँ का रेलवे स्टेशन, वहाँ का बस स्टॉप सब एक तरतीब से है। जहाँ बेतरतीब है तो वहाँ कहीं सड़क चौड़ी, कहीं तंग, कहीं कुछ। जहाँ रहना चाहिए रेलवे स्टेशन वहाँ नहीं है, जहाँ नहीं रहना चाहिए वहाँ है। ये बेतरतीब शहर है। प्लान्ड सिटी में किसको कहाँ रहना है, मैदान कहाँ रहना है, स्टेशन कहाँ रहना है, एयरपोर्ट कहाँ रहना है, गलियाँ कैसी रहनी है, म्यूनिसिपैलिटी को कहाँ रहना है, असेंबली हाउस कहाँ रहना है, फंक्शन हॉल कहाँ रहना है, वो सब एक इंजीनियर के प्लान के तहत वो शहर बनता है। तुर्की सारा का सारा एक प्लान मुल्क है। और वहीं तुर्की में वो म्यूजियम है जहां आका अलैहिस्सलाम के तबरुकात हकीकी सूरत में वहां मौजूद है। जहां भी लोग कहते हैं कि ये हुजूर के नक्शे कदम हैं और हजारों की तादाद में दुनिया भर में है, वो मशकूक है। चूंकि सरकार के नक्शे कदम ऐसा नहीं था कि रास्ते से चलते थे तो जहां भी आपने कदम रखा हर पत्थर पे आपके पांव का नक्शा उभर गया, ऐसा नहीं है। चूंकि एक मोजेजा है, पत्थर का पिघल जाना, हुजूर के पाए अक़दस का नक्श वहां उभर जाना, ये मोजेजा है। तो मोजेजा हमेशा नहीं होता है, मोजेजा खर के आदत के तौर पर दलील के अल्लाह के नबी हैं, ये कभी कभी मोजेजा सातिर होता है। जैसे चांद के 2 टुकड़े हो गए थे, हमेशा नहीं कि रोजाना उंगली उठा दी चांद के 2 टुकड़े हो गए, सिर्फ एक बार ऐसा हुआ और दुनिया को बता दिया कि ये चांद भी मुस्तफा का गुलाम है और पूरी दुनिया हुजूर के तसर्रुफ में है। जहां चाहें, जिधर चाहें, जिस पे चाहें अपने इख्तियारात का इस्तेमाल फरमाएं। सूरज एक बार डूबा हुआ पलटा, हुजूर ने पलटाया एक बार, ताकि दुनिया जान ले के जिस सूरज की लोग परस्तिश करते हैं वो सूरज मुस्तफा की गुलामी करता है।
सूरज और चांद के परस्तारों, तुम भी जान ले कि चांद मुस्तफा की गुलामी कर रहा है और सूरज मुस्तफा की गुलामी कर रहा है। जिस पहाड़ को तुम पूजता है वो पहाड़ का पत्थर अपने सीने पे मुस्तफा के पांव का नक्श उभार लेता है। और जिस नदी को तुम परवरिश की परस्तिश तुम करता है, नदी नाले की, गंगा की, जमुना की, कृष्णा की, कावेरी की, पहाड़ की, पत्थर की, झाड़ की, बंदर की, जानवर की, जिसकी लोग परस्तिश करते हैं, पूजा करते हैं, ये दरख्त वो है जो मुस्तफा को सजदा करने अपनी जगह से उखड़ के आता है और सजदा करके वापस अपनी जगह खड़ा हो जाता है। ये जानवर जिसको लोग सजदा करते हैं, ये जानवर भी मुस्तफा के सामने आ करके सजदा किया करते थे। ये पहाड़ भी आका के कदम को पाके हिलने लगता था, गुलामी का सबूत देता था। यानी जिन जिन चीजों को दूसरों ने अपना खुदा मान लिया है, वह सारी चीजें मुस्तफा की गुलामी कर रही हैं, ताकि लोग जान ले कि मैंने महबूब को दलील बना के भेजा है। और दलील वो है जिसे देख करके अल्लाह को समझा जा सकता है। अगर तुमने पत्थर को खुदा कहा, खुदा वो है जो सारा इख्तियार अपने पास रखता है। ये पत्थर तो गुलामी मुस्तफा की कर रहा है, तो पत्थर के बजाय मुस्तफा के सामने सर झुकाना चाहिए। चांद और सूरज के सामने तुम सर टेके हुए हो, तो सूरज और चांद मुस्तफा के इशारे पे महवी गर्दिश है। जिस नदी नाले की तू परस्तिश करता है, वो नदी मुस्तफा के गुलाम के लिए सीने पे रास्ता दे देता है। तो तुम किसकी परस्तिश कर रहा है? दरिया मुस्तफा की गुलामी कर रहा है, सूरज और चांद मुस्तफा की गुलामी कर रहे हैं, या पेड़ और जानवर मुस्तफा की गुलामी कर रहे हैं। तो अगर सजदा ही करना है तो जिन जिन ये सारी चीजें जिस मुस्तफा को सजदा कर रही है, उस मुस्तफा के सामने आ जा। जब दुनिया मुस्तफा के सामने आएगी तो दंग रह जाएगी कि मुस्तफा खुद अपना सजदा न करवा के खुद अपनी पेशानी को खुदा की बारगाह में झुका दिया है। तो मुस्तफा अल्लाह की दलील बन के आए हैं। अब पहाड़ के परस्तार देख ले कि मुस्तफा के इशारे पे पहाड़ चूर चूर होता हो, वस्त में आता हो, वो मुस्तफा खुदाए वाहिद के सामने सजदा रेज़ है। सूरज और चांद को अपनी अंगुली पे नचाने वाला मुस्तफा वो खुदाए वाहिद के सामने सजदा रेज़ है। तो अब दुनिया को अल्लाह की मार्फत हासिल करने में दिक्कत न होगी कि सबसे बड़े शक्तिशाली मुस्तफा जिनके इशारे पे सूरज, चांद, नदी, नाला, पेड़, झाड़, जानवर सब गर्दिश करें। अब वो जिसको खुदा कहते हैं वही खुदा है, वो जिसके सामने पेशानी टेकते हैं वही खुदा है। इसलिए जब सारी दुनिया मुस्तफा के इख्तियार को देख के हुजूर के पास आती है और हुजूर खुदाए वाहिद के सामने सजदा रेज़ होते हैं, तो सारी दुनिया कहती है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह के। क्योंकि अल्लाह ने अपने महबूब को सबसे ज्यादा ताकतवर बना के बता दिया, ये ताकतवर मुस्तफा जिसको सबसे ताकतवर समझ ले वही खुदा है। ये ताकतवर मुस्तफा जिसके सामने सर झुका दे वही खुदा है। तो हुजूर अल्लाह की दलील बन के आया। सरकार दो जहां अलैहिस्सलाम के पास आ जाए दुनिया, अगर अल्लाह की मार्फत का नूर हासिल करना हो और दुनिया के इख्तियारात और दुनिया की ताकतों को देखना हो तो मुस्तफा के पास आ जाए। मैं कह रहा हूं कि हुजूर का एक मौजज़ा था, उसने दिखला दिया, लेकिन सरकार की पूरी जिंदगी सरकार की नशिस्तों बर्खास्त, हुजूर की तन्हाई, हुजूर की जलवत, आका अलैहिस्सलाम का शादी करना, हुजूर का बच्चे पैदा करना, आका अलैहिस्सलाम का अपनी औलाद के बीच में रहना, सरकार दो जहां का मक्के में अपने पड़ोसियों के लिए सौदा सलब बाजार से खरीद के लाके देना, आका अलैहिस्सलाम का गुलामों से और जंगी कैदियों से हुस्न सुलूक करना, सरकार दो जहां के 11 बीवियों के दरमियान अदल और इंसाफ करके सबों को ये बता देना कि सारी बीवियां कहने लगी कि हुजूर मुझसे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। एक बीवी को संभालना मेरे लिए मुश्किल है, एक बीवी की वजह से शौहर घर से बाहर बाप मारे मारे फिरता है। क्यों साहब, तुम 40 दिन के बाद बाहर से घर आए हो तो तुम्हारे लिए एक एक मिनट कीमती है, मगर घर के बजाय तुम बाहर चाय की दुकान पे 1 घंटे से बैठे हो। वो बोलता है क्या करें, दिमाग चाट रही है वहां पे, और दिमाग चटाई से बचने के लिए घर में है। एक बीवी है दिमाग चाट रही है, एक बीवी है लत्तम जुत्तम हो रहा है, एक बीवी है जंगो जदाल की आमाजगा घर बना हुआ है,
एक बीवी है, रोजाना मुंह मोटाव है, मुंह को फुलाना है, नाराजगी का इजहार करना है, लड़ाई और झगड़ा करना है। सारा घर, सारे पड़ोस के लोग सुनते हैं कि इस घर में लड़ाई हो, जहां दोनों की जबान कैंची की तरह चलती है। एक शरीफ न हो, एक सब्र तहम्मुल करने वाला न हो, तो रोजाना घर की आवाजें पड़ोस के सारे लोग सुनते हैं। कहते हैं, दानिश्वरों ने कहा है कि शादी का पहला साल लड़का बोलता है, दुल्हन सुनती है, और शादी के दूसरे साल लड़की बोलती है, दूल्हा सुनता है, और शादी के तीसरे साल दोनों बोलते हैं और समाज सुनता है। इसी तरह सारी जिंदगी लड़ाई झगड़ा। एक बीवी है तो जंग है, एक बीवी है तो तकरार है, एक बीवी है तो मैं के छोड़ आया अब सुकून की सांस लिया, चलो कम से कम 2 4 10 20 दिन तो कम से कम आराम मिला। हमेशा दिन रात सर चाटते, तुम्हारी माँ ऐसी है, तेरी बहन ऐसी है, तेरा भाई ऐसा है, तेरी फूफी ऐसी है, तेरी चची ऐसी है। यानी सबसे बुरा शौहर का ही खानदान है। उनका भाई भाई है, उनका बाप बाप है, उनकी माँ माँ है, उनका भाई उनका भतीजा भतीजा है। वो 5 दिन से बुखार में मुब्तला हो, भाई आ जाए तो उठ करके बिरयानी बनाएंगी, फोन करेंगी, भाई आया है 2 साल के बाद, मटन लेते आना। अगर मैं फोन कर दूं कि मेरा चचा आया है, मेरा दादा आया है, जरा अच्छा ढंग से खाना बना देना, मैं लेट से पहुंचूंगा, क्या करूं, हमेशा तुमने तंग कर दिया। चाचा आया है, दादा आया है, फूफी आई है, चची आई है, बहन आई है। यानी शौहर का कोई रिश्तेदार आ जाए तो सर पे बोझ हो जाता है। इसी बद किरदारी की वजह से उसकी जिंदगी ससुराल में तल्ख हो गई। इसी तंग सोच की वजह से वो हमेशा उलझन में रहती है, टेंशन में रहती है, और 1 दर्जन बीमारियां उसके अंदर पिनपने लगती हैं। हार्ट की मरीज वो होती हैं, ब्लड प्रेशर हाई की मरीजा वो हो जाती है, और साहब शुगर ब्लड की मरीजा वो हो जाती है, चूंकि वो तंग सोच उसकी रहती है। लड़ना झगड़ना शौहर की माँ से, शौहर के बाप से। अगर वो सेहतमंद रहना चाहती है तो एक ही नुस्खा है कि वो खुश रहे और नेक बन के रहे, कुरान पाक का दामन थाम के रहे। शौहर की माँ को माँ समझे, शौहर के बाप को बाप समझे, शौहर के भाई को भाई समझे, शौहर की बहन को अपनी बहन समझे। 50 साल गुजर जाएंगे, सर में दर्द नहीं होगा उसका। इसलिए कि जहां तंगियां रहती हैं वहां बीमारियां आती हैं, जहां खुश मजाजी रहती है वहां सेहत और तंदुरुस्ती रहती है। जहां खुश मजाजी रहती है वहां सेहत और तंदुरुस्ती रहती है। गुस्से ने इसको बीमार बना दिया, गुस्से ने इसको कहीं का नहीं छोड़ा। शौहर जमीन बेच के तेरा इलाज कर सकता है, मगर तेरी बीमारी का दर्द नहीं बांट सकता है। तू तड़पेगी, तेरा पेट में गैस्ट्रिक होगा, तू दर्द से चीखेगी। शौहर दवाई ला सकता है मगर वह चीख दूर नहीं कर सकता, वह दर्द नहीं दूर कर सकता। इस बात को हमेशा रखें। शौहर बेचारा मजदूरी करके जमीन बेचकर भीख मांग के इलाज तो करवा देगा, लेकिन जो दर्द हो रहा है, सर फट रहा है, जो दर्द हो रहा है कि सीना फट रहा है, अब वो सांस रुक जाएगी, ये तकलीफ ना शौहर बांटेगा ना औलाद बांटेगी, कोई नहीं बांटेगा। ये तकलीफ हर आदमी को झेलना है। तो आदमी को सेहतमंद रहने के लिए बीवी का टेंशन इतना नहीं लेना है कि खुद हार्ट का मरीज हो जाना है, माँ बाप का टेंशन इतना नहीं लेना है कि खुद कब्र के मुंह में चला जाना है, बाल बच्चों का टेंशन इतना नहीं लेना है कि बच्चा अपनी जगह रहे और खुद सूख के कैंसर से हम ग्रस्त हो जाए। मदरसा के बच्चों का टेंशन इतना नहीं लेना है कि हम कारी रज़ूलुल्लाह ने कभी मुझसे कहा था, जब मैंने कहा था एक मदरसा छोटा सा मैंने कायम किया है, वो बोला कि ब्लड प्रेशर और शुगर और हार्ट, या तीनों बीमारी की दवाई पहले जेब में रख लीजिए, फिर मदरसा खोलिए आप। उन्होंने कहा था फिर मदरसा खोलिए, क्योंकि आप 50 करोड़ रुपए बाहर से चंदा करके लेके आ जाएंगे। मदरसा एक ऐसा समंदर है कि सारा पैसा उसमें गुम हो जाएगा। मदरसों बच्चों को खिलाना है, मदरसे की तामीर करनी है, मदरसे की तनख्वाह देनी है, और साथ रिपेयरिंग करना है, सामने वाला प्लॉट जमीन बिक रही उसको खरीदना है। इतने सारे काम हैं। वो तो जो नाजिम और मोहतमिम होते हैं, समझ लें कि उसको तो ज़कात भी देना चाहिए आपको, और उनको सलाम करके मीठी चाय भी पिलानी चाहिए कि जो काम इंजीनियर ना करे, जो काम डॉक्टर ना करे, जो काम फिलोसोफर ना करे, जो काम हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री ना करे, वह काम एक मदरसे का नाजिम करता है। नाजिम ठकेड़ मोल लेता है। हम हलाल तरीके से चंदा करें, बच्चों को खिलाएं, फिर भी हरामखोरी का ताना हम सुनते हैं, ये मदरसे का माल है, लूट के खा लिया। हम तकरीर करते हैं, तकरीर के नजराने को बचा करके हम 4 व्हीलर सेकंड हैंड 2 लाख में आल्टो खरीद लें, फिर भी लोग कहते हैं कि कोई सेठ दिया होगा या मदरसे का माल दबा के खा लिया होगा। यानी मौलवी कुछ भी करे तो ये हराम ही खाता होगा।
کوئی سیٹ حج کروا دیا ہوگا, ہم اپنے پیسے کو بچا بچا کے رکھ کے حج کرنے جائیں, 10 سال کے بعد پیسہ جمع ہو جائے حج کرنے کے قابل, پھر بھی لوگ کہتے ہیں کوئی سیٹ کروا دیا ہوگا یا مدرسے کا مال دبا کر کے حج کو جا رہا ہوگا. ایسی سوچ تنگ ہماری بن گئی. میں کہتا ہوں کہ آپ بھی بنداس رہیں, بے فکر رہے, زیادہ ٹینشن دنیا کا نہ لیں, نہ مکان کا ٹینشن, نہ گاڑی کا ٹینشن, نہ صاحب اپنے بچوں کے مستقبل کا ٹینشن. مست رہیں. آخرت کی فکر چہرہ نکھار دیتی ہے اور دنیا کی فکر چہرہ بگاڑ دیتی ہے. جس کا بھی چہرہ سوکھ رہا ہے, جس کے بدن میں خطرناک بیماریاں کام کر رہی ہیں, جس کو جو خودکشی کر کے پھانسی کے پھندے پہ لٹک رہا ہے, زہر کھا کے مر رہا ہے, مکان کا صدمہ, گاڑی کا صدمہ, بیٹی کی شادی کا صدمہ, زمین کی خریداری کا صدمہ, مال بنانے کا صدمہ, یعنی اسی دنیا کی ذلیل سی چیزوں کی فکر ہے جو جوانی میں جوان کو بوڑھا بنا دیتی ہے. یہ فکر ہے جو بوڑھے کو قبر میں 10 سال پہلے پہنچا دیتی ہے. یہ فکر ہے جو گھر میں رہنے کے قابل کلائمیٹ نہیں چھوڑتی ہے. اس لیے بزرگوں نے کہا ہے کہ فکر دنیا تو تباہی کرتی ہے. اگر چہرے پہ مسکراہٹ چاہیے اور زندگی کو تمام فکروں سے آزادی چاہیے اور سوکھی روٹی کھانے کے بعد بھی تندرستی چاہیے تو ایک غم ہے آخرت کا, وہ غم لگا لے. آخرت کا غم, جنت کا غم, آخرت کا غم, جنت کا غم, اللہ رسول کی رضا, خوشنودی کے حصول کا غم, وہ غم لگا لے. دل سے بیماری بھی ختم ہوگی, چہرے پہ مسکراہٹ آ جائے گی. حضور نے آخری حج کے موقع پر کہا تھا کہ جو اپنے پیچھے دنیا کا غم لگا لیتا ہے اللہ اس کی نگاہوں کے سامنے غریبی کا دروازہ کھول دیتا ہے. وہ چاہے خربوں میں کھیلے مگر مفلسی اور غریبی اس کے سامنے رہتی ہے, بھوک بڑھتی جاتی ہے, اسی حال میں وہ مر جاتا ہے. اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں رہتی کہ یہ مفلسی میں مرا ہے, فیکٹری میں بیٹھ کے مرا ہے, کہ کھیت میں مرا ہے, کہ رات میں فیکٹری کے دروازے پہ دربانی کرتے ہوئے مرا ہے. اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں. جو اپنے پیچھے مال کا غم لگا لیتا ہے, یہی وجہ ہے کہ مال کی جستجو میں مرنے والا, کوئی شادی کی پارٹی میں ڈانس کرتے کرتے مر رہا ہے, کوئی اپنا ٹینشن اٹھانے کے لیے شراب پیتے پیتے مر رہا ہے. ابھی میں کل تھا آندھرا پردیش میں, وہاں بتایا کہ حضرت ایک آدمی شراب بھی پیتا ہے اور صبح نہا دھو کے فجر کی نماز بھی پڑھنے جاتا ہے, اور جب ان سے بولا جاتا ہے وہ کہتا ہے حضرت اتنے ٹینشن ہے کہ ٹینشن کو بھلانے کے لیے شراب پینا پڑتا ہے, ایک گلاس میں پی لیتا ہوں تو سارا ٹینشن ختم ہو جاتا ہے, پھر صبح فریش ہو کے اٹھتا ہوں, نہا دھو کر کے نماز پڑھ لیتا ہوں. حضرت ذرا نارمل رہیے, شراب کے خلاف تقریر نہ کیجیے, وہ تھوڑا ٹینشن کو بھلانے کے لیے ضروری ہے میرا اس کا پینا. پھر ٹینشن ہی اتنا کیوں مول لیتا ہے ایک حرام ذریعے سے, تو اس ٹینشن کو بھولنا چاہتا ہے. شراب کا قطرہ قطرہ حرام ہے, بوند بوند حرام ہے. وہ اپنا بیماری کا علاج ہے, نہ ٹینشن کا علاج ہے, بلکہ یہ ان لوگوں کی طرح جو کہتا ہے کہ میں کھینی نہیں کھاؤں تو مجھ کو لیٹرن صبح نہیں ہوتا ہے. اور ہم لوگ 53 ایئر ہماری عمر ہو گئی, میں نے ایک دن بھی کھینی لٹا کے ہوٹ پہ نہیں رکھا. تو کیا مطلب 53 ایئر سے لیٹرن نہیں ہو رہا. جو کہتے ہیں کہ بیڑی نہیں پیتا ہوں تو پاخانہ نہیں ہوتا صبح سویرے, ٹوائلٹ میں کھل کے اجابت نہیں ہوتی, تو میں کہتا ہوں میں نے آج 53 ایئرز میں آج تک میں نے عادتاً بیڑی نہیں پیا. کیا ہم ٹوائلٹ نہیں جا پاتے ہیں؟ عادت انہوں نے لگا لی ہے, ادھر منہ سے دھواں نکالنا ہے, ادھر پیچھے سے ٹوائلٹ نکالنا ہے, تو عادت جس کی لگ گئی ہے اب وہ عادت کا غلام ہو گیا ہے کہ بغیر گٹکا کھائے ایسا نہیں ہوتا ہے, بغیر کھینی کھائے پخانا نہیں ہوتا ہے, بغیر بیڑی پیے پخانا نہیں ہوتا ہے. جو اپنا ٹینشن بھولنے کے لیے شراب کا عادی ہو گیا وہ اگر نہیں پیے گا تو اس کو اور الجھن بڑھتی چلی جائے گی. لیکن اگر دائمی الجھن سے نجات پانا ہے تو حرام کام کو یک لخت چھوڑ دے. حرام کام کے چھوڑنے کا انعام جنت تو وہاں ملے گی, اس دنیا میں سکون ملے گا, چین ملے گا, راحت ملے گی. یہ وعدہ ہے کہ اللہ رسول کی فرما برداری میں الجھنوں کا خاتمہ ہوتا ہے, راحتوں بھری زندگی مل جاتی ہے. ہم نے مصیبتیں خود سے مول لی, ہم نے خود سے اپنے گھر میں آگ لگایا ہے, ہم نے خود سے میاں بیوی کے رشتے کو تلخ کیا ہے, ہم نے خود سے پڑوسیوں سے لڑائی مول لے کے اپنا جینا محال کر دیا ہے سماج میں کہ اب یہ گاؤں رہنے کے قابل نہیں رہا, اب مجھے گڑھوا جانا
چاہیے. جب وہاں جا کے دیکھا وہاں کے پڑھے لکھے لوگ پڑوسیوں سے کتے کی طرح لڑتے ہیں اور جنگ جدال گاؤں سے زیادہ ہے, اب وہ کہتے ہیں مجھے گڑھوا چھوڑ کر کے رانچی جانا چاہیے. جب وہ رانچی میں جا کے دیکھتا ہے کہ یہاں کے لوگ تو گڑھوا اور دیہات سے زیادہ یہاں ایک دوسرے سے لڑ جھگڑ رہے ہیں, اب وہ کہتا ہے مجھ کو رانچی چھوڑ کے دلی جانا چاہیے. اب وہ دلی میں جب دیکھتا ہے وہاں کے پڑھے لکھے لوگ ایک دوسرے سے سالوں سال تک بات نہیں کرتے, ایک دوسرے سے ملنے کا موقع نہیں ملتا ہے, سب اپنے اپنے کوارٹر اپنے اپنے فلیٹ میں بند ہیں. وہاں محبت نام کی جو چیز گاؤں دیہات میں ملتی تھی وہ وہاں نہیں ہے. یہاں گالی گلوچ ہے, غیبت بھی ہے, مگر ضرورت پڑتی ہے تو سارا سماج جمع ہو جاتا ہے. بیٹی کی شادی ہو, جنازے کو اٹھانا ہو, چاہے چھپر چاہے گھر کی تعمیر ہو, سارے لوگ جمع ہو جاتے ہیں. یہاں گاڑی خراب ہوئی, لوگ آ کے دھکا مار کے اس کو اسٹارٹ کر دیتے ہیں. شہروں میں کوئی کسی سے مطلب نہیں رکھتا. جب دیکھا یہاں بھی حسد ہے, جلن ہے, دشمنی ہے, تو اب کیا کرے گا؟ بھاگا تھا یہاں سے گڑھوا, گڑھوا سے رانچی, رانچی سے دلی, اب دلی سے کہاں بھاگے گا؟ امریکہ میں امن ہے, برٹین میں امن ہے, فرانس میں امن ہے, وہ ترقی یافتہ ملک ہے, وہاں بہت زیادہ ڈیولپمنٹ ہے, وہاں صاحب دولتوں کی ریل پیل ہے, ہر طرف ہریالی اور خوشحالی ہے, ساری دنیا کی ٹیکنالوجی وہاں ہے, وہاں بہت آرام رہے گا. تو دلی چھوڑ کے ہزاروں لوگ بھاگ گئے فرانس, ہزاروں لوگ چلے گئے واشنگٹن ڈی سی. ہندوستان کا سب سے بڑا مالدار, اس نے 4,000 کروڑ روپے میں انہوں نے نیو یارک امریکہ کی راجدھانی واشنگٹن ڈی سی میں ایک ہوٹل خریدا ہے. 4,000 کروڑ نہیں, 400 کروڑ نہیں, 4,000 کروڑ میں انہوں نے ہی کئی ہزار کروڑ میں ایک ریسٹورنٹ برٹین میں خریدا. برٹین میں لندن میں انہوں نے خریدا تاکہ ہم وہاں جائیں, وہاں رہیں, مست رہیں. یہاں کئی ہزار کروڑ کی بلڈنگ بمبئی میں ہے, مگر پنڈت جی نے بولا ہے اس میں رہے گا تو تیرا سارا کاروبار ٹھپ ہو جائے گا اور تو جلدی سے مر جائے گا. اب یہ برٹین میں رہتا ہے, کبھی نیو یارک میں رہتا ہے, تو ان سے پوچھے کہ نیو یارک میں تو مزہ ہوتا ہوگا, وہاں تو زندگی کی ساری خوشیاں مل گئی ہوتی ہوں گی. 4,000 کروڑ کا گھر آپ نے خریدا ہے, ہوٹل, وہاں تو بہت مست رہتے ہوں گے. ان کا بھی چہرہ سوکھا ہے. ابھی اڈانی کا ایک معاملہ اٹھا پارلیمنٹ میں, راہل جی نے بڑی شدت کے ساتھ اٹھایا. اڈانی جو ہندوستان کا سب سے بڑا مالدار ہے, چہرہ سوکھ کے چھوٹا ہو گیا. اب جب امبانی جو فرسٹ نمبر پہ تھے وہ سیکنڈ نمبر پہ چلے گئے, ان کا بھی چہرہ سوکھ کے ہلکا سا ہو گیا. یعنی وہ اربوں میں کھیلنے والا 150 کروڑ کی آبادی والے ہندوستان کا پہلے نمبر کا مالدار, تو سیکنڈ پادان پہ گیا تو چہرہ چھوٹا ہو گیا. اب ٹینشن سے اس قدر ٹینشن میں گرست ہو کہ ٹینشن فری کی گولیاں استعمال کرنے لگے. یہ اب یہ نہیں ہے سکون, نہ گڑھوا میں, نہ رانچی میں, نہ بمبئی میں, نہ ہندوستان چھوڑ کے جانے میں, امریکہ اور برٹین میں. اینما تکونو, جہاں کہیں بھی رہو, یدرککم الموت, موت تمہیں پکڑے گی, موت تیرے ساتھ رہے گی. یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان. اے جنات اور انسان کے گروہ, اگر تیرے بس میں ہے دیہات چھوڑ کے شہر چلا جا, شہر چھوڑ کے مہا شہر چلا جا, مہانگر چھوڑ کے دنیا کا سب سے بڑا ملک چلا جا, دنیا کے کسی کناروں سے چاہو نکل جاؤ, مگر جہاں بھی جائے گا وہاں اللہ کی سلطنت ہے, وہ اللہ کی بادشاہت ہے. اللہ سے بھاگ کے تو نہیں جا سکتا, اس لیے تو کیوں شہر اور نگر بدلتا ہے کہ وہاں سکون ملے گا, وہاں سکون ملے گا. نہیں ملے گا سکون, نہ بنگلے میں, نہ گاڑی میں, نہ ساتھ مال میں, نہ صوفہ اور کتا میں. اللہ نے سکون ان چیزوں میں رکھا ہی نہیں ہے جس کی تلاش میں تیرا چہرہ کالا ہو رہا ہے, جس کی تلاش میں رات رات کی نیند خراب ہو رہی ہے, جس کی تلاش میں مارے مارے پھر رہا ہے کہ نیند تک نہیں آ رہی ہے. تو سکون اللہ نے نہ صوفہ میں رکھا ہے, نہ کتا میں رکھا ہے, نہ برٹین میں رکھا ہے, نہ فرانس میں رکھا ہے. تو سکون ہے کہاں؟ قرآن کہتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, جان لے کے سارا سکون اللہ نے اپنے ذکر میں رکھا ہے, اپنی یاد میں رکھا ہے, عبادت میں رکھا ہے. فرانس میں جو سکون نہیں ہے وہ سکون اس جھوپڑی میں ہے جس جھوپڑی میں اللہ کا ذکر ہے, جہاں درود ہے, جہاں تلاوت ہے. تو بزرگوں نے کہا کہ جگہ مت بدل, اپنا کردار بدل لے, اپنا اخلاق بدل لے, اپنے جینے کا انداز بدل لے. وہی چھوٹا سا دیہات فرانس کی راجدھانی پیرس سے تیرے لیے بہتر ہو جائے گا. جگہ مت بدل, اپنا کردار بدل لے. جگہ مت بدل, اپنے احوال بدل لے, اپنے جینے کا ٹرینڈ بدل لے,
اپنے جینے کا انداز بدل لے، ورنہ جہاں بھی جائے گا ہر جگہ اللہ کی مخلوق ہے، ہر جگہ انسان ہے، اور انسان جہاں ہے انسان کے سینے میں حسد کا رہنا طے ہے، انسان کے سینے میں جلن اور کینہ قدورت کا رہنا طے ہے، انسان کے سینے میں گھمنڈ کا رہنا طے ہے۔ اب علم کی روشنی میں اس گھمنڈ کو دبانا ہے، علم کی روشنی میں اس حسد کو دبانا ہے، علم کی روشنی میں اس گندے خیالات کو پاؤں کے نیچے روندنا ہے۔ جہاں علم کا نور ہے، جہاں اچھی سمجھ ہے، وہاں گندی عادتیں، گندے خیالات آتے جائیں گے، اور علم کی روشنی میں اس خیالات کو دبایا جاتا رہے گا، تو جو سینہ کل گھمنڈ اور حسد کی آمادگاہ تھا، وہی سینہ عاجزی، خاکساری، تقوی، پرہیزگاری کا نگیرہ بنتا چلا جائے گا۔ اسی لیے علم ضروری ہے، اسی لیے اچھوں کی صحبت ضروری ہے۔ میں یہ کہہ رہا تھا سرکار دو جہاں کی زندگی، آپ ملاحظہ کریں کہ ہماری ایک بیوی میں میرا گھر لڑائی اور جھگڑے کا اڈا بنا ہوا ہے، اور حضور کے نکاح میں 11 بیویاں ہیں، 11 بیویاں۔ اللہ سمجھ، سرکار دو جہاں کی پہلی شادی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہوتی ہے، اور ساری اولاد حضور کی انہی سے ہے۔ جب حضور 25 سال کے جوان تھے، اس وقت اتنا حسن چہرے سے ٹپک رہا تھا کہ مکہ کے سارے لوگ تمنا کرتے تھے کہ کاش عبداللہ کے چاند سے میری بیٹی کا عقد ہو جائے، تاکہ ان کی دامادی بھی میری نسلیں فخر کرتی رہے۔ ظاہر سی بات ہے، حسن کا شیدائی تو سارے لوگ ہوتے ہیں، اور ایسا حسین جیسا نہ پہلے کبھی دیکھا گیا نہ قیامت تک دیکھا جائے گا۔ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نفس جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہ وہ شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ مصطفیٰ کی ذات لم یأت نظیر و فی نظر مثل تو نہ شد پیدا جانا۔ وہ حسن ہے مصطفیٰ کا جو ملاحت لیے ہوا ہے، جو آدمی کو بے چین کر دیتا تھا۔ سرکار دو جہاں 25 سال کی جوانی میں 40 سالہ عورت کا انتخاب کیا، جو 2 شوہر سے بیوہ ہو چکی ہے، تاکہ ساری دنیا قیامت تک جو بھی حضور کی بائیوگرافی پڑھے، سرکار کی مقدس جیونی پڑھے، سرکار کی پوتر جیونی، حضور کی مقدس حیات طیبہ کا مطالعہ کرے، تو وہ اس میٹر پہ آ کے رک جائے۔ جس وقت وہ 12-14 سال کی خوبصورت دوشیزاؤں سے نکاح کر سکتا تھا، عرب کی سب سے خوبصورت ترین خاتون کو اپنے نکاح میں لا سکتا تھا، اس وقت وہ 40 سالہ بیوہ خاتون جو 2 شوہر سے بیوہ ہو چکی ہے، ان کا سلیکشن وہ کر رہا ہے اپنے نکاح کے لیے، اپنی بیوی کے لیے 40 سالہ خاتون کا سلیکشن کر رہا ہے۔ 25 سال کی اس جوانی میں، جس جوانی میں حضور کے چہرے پہ ہیبت کی وجہ سے لوگوں کی نگاہیں نہیں گڑ پاتی تھی، لوگ دیکھ نہیں پاتے تھے مصطفیٰ کا چہرہ۔ کان الشمس تجری فی وجہہ، جناب ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ حضور کا حسن ایسا تھا جیسے کہ نبی کے چہرے میں کوئی سورج تیر رہا ہو، سورج تیر رہا ہو۔ یہ ہے سرکار دو جہاں کا حسن۔ اس وقت میں آپ نے سلیکشن کیا 40 سالہ بیوہ خاتون کا، اور جب آپ کی عمر 50 سے اوپر ہو گئی، 50 سے اوپر جو طبعی نیچرل ایج آدمی کی جو ہوتی ہے عام طور پر، وہ عمر یہ ہوتی ہے کہ 50 کے بعد شادی کی چاہت مٹ جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، اور آدمی کی چاہت 18 سال سے لے کر کے 40 سال کے درمیان جب وقت پرفیکٹ جوان رہتا ہے، اس وقت اس کے بدن میں خواہش رہتی ہے بیویوں کی، اور بیویوں کے حسن و جمال کی، اور پھر اپنی خواہشات کی تکمیل کی فکر رہتی ہے۔ لیکن 50 کے بعد آدمی نڈھال ہو جاتا ہے، آدمی کی رگیں کمزور ہو جاتی ہیں۔ سرکار دو جہاں نے 25 سال میں جب 18 سال 12 سال کی دوشیزہ سے نکاح کر سکتے تھے، اس وقت تو 40 سال کی خاتون کا انتخاب کیا، اور جب 50 سال سے اوپر آپ کی عمر گئی، اس وقت طبعی عمر کا تقاضا ہے کہ شادی کی طرف سے رجحان گھٹ جاتا ہے، اس وقت مصطفیٰ نے 9 سالہ خاتون کا انتخاب کیا ہے۔ اسی کو ہندوستان کے چند کم پڑھے لکھے لوگ سمجھ نہیں پائے، اس نے حضور پہ الزام لگا دیا، نہیں سمجھ پائے امریکہ کے چند دانشور، انہوں نے کہا کہ یہ 50 سال سے اوپر کی عمر میں 9 سالہ خاتون سے نکاح کر کے اپنے گھر میں لا کر کے بتا دیا ہے کہ اس کے دماغ میں عورتوں کی چاہت تھی۔ لوگوں نے حضور کی زندگی کا مطالعہ نہیں کیا، چونکہ پہلے سے حسد تھا،
हुजूर की आलमगीर मकबूलियत, यूनिवर्सलिटी, पूरी दुनिया में आफाकी तौर पर जो मुस्तफा को इज्जत मिली, अजमत मिली, जिनके फॉलोवर की तादाद दुनिया भर में अरबों की तादाद में फैल गए, और आज तक किसी का इतना फॉलोवर, किसी की इतनी मकबूलियत, किसी के बारे में इतनी किताब आज तक नहीं लिखी गई जितनी किताबें मुस्तफा की शान अक़दस में आज तक लिखी गई। यहाँ तक कि उसी अमेरिका यूरोप का दानिश्वर हुजूर की जिंदगी को पढ़ने के बाद उन्होंने कह उठा कि आई कैन नॉट फाइंड एनी अदर मैन इन हिस्ट्री लाइक मोहम्मद। मैं पूरे मानव इतिहास में मुस्तफा का जवाब नहीं पाता हूँ। उनका बचपन लाजवाब, उनकी जवानी लाजवाब, उनकी एक्टिविटीज लाजवाब। वो एक ऐसे सरदार थे जो बॉडीगार्ड से पाक थे, वो ऐसे किंग थे जो ज़ाहिरी ताकतों को सजाने संवारने में जोर नहीं देते थे। मस्जिद में ऐसे नजर आते थे कि इससे बड़ा पोप, यानी वो क्रिश्चियन अपनी जबान में कहा कि he was the pope and king in same time, यानी वो अपने वक्त में बहुत बड़े साहिब, बहुत बड़े इबादत गुजार, अपने वक्त में बहुत बड़े सरदार ऐसे कि सारा अरब आपके ज़ेरे नगी है, सरदार ऐसे कि मक्का मदीना और सारा अरब आपका कलमा पढ़ के आपका गुलाम हो गया है, और सरदार ऐसे कि जान हथेली पे लेके लोग आपके सामने खड़े हैं, इशारा हो तो पूरे शहर को हिला के रख दिया जाए, वो सरदारी है। और फिर ज़ुहद ऐसा है कि मस्जिद में तने तनहा मिट्टी पे सजदा करे और इस कदर रोए कि आपकी पेशानी और नाक में मिट्टी लगी हुई हो, और इस कदर रोए कि रोने की आवाज दूर तक के मुसल्ले के नमाजी के कान तक पहुंच जाए। कहते हैं कि उनमें तकल्लुफात नहीं थी, उसमें बनावट नहीं थी, ये सादगी उनकी ताकत थी। इसी सादगी की वजह से सारे अरब को हिला के रख दिया। अलग अलग ख्यालात के स्कॉलर पैदा हुए। चंद सतही किस्म के लोगों ने हुजूर की जिंदगी का गलत ढंग से मुताला करके हुजूर की उस शादी को हुजूर के लिए ऐब और डिमेरिट साबित करना चाहा। हालांकि वो सिर्फ इतना गौर कर लेता, जिस वक्त 9 साल की खातून से अक़द करना था उस वक्त तो 40 साल औरत का इंतखाब किया, और जिस वक्त चाहत खत्म हो जाती है उस वक्त आपने 9 साल खातून से अक़द किया। हिकमत रही होगी कोई जिसकी जिंदगी का हर पहलू लाजवाब है, जिसकी खामोशी फिक्र से इबारत है, और जिनकी गुफ्तगू लोगों के लिए हीरे जवाहरात से कम नहीं है। जो बोलता है तो क़यामत तक के लिए एक रोल मॉडल होते हैं, जो खामोश रहते हैं तो लोगों के सीनों को अपनी हिकमत और तदबीर से हिला देते हैं। मैदान जंग में रहे तो क़यामत तक के लिए जंग को सिविलाइज बना दे, अपने घर में रहे तो अदल और इंसाफ का नमूना बनकर दुनिया के आखिरी घर तक के लोगों को अपने घर को अमन का गहवारा बनाने के लिए शानदार मिसाल पेश कर दे कि लड़ाई झगड़े से अमन कायम नहीं होता, जहां सब्र है वही अमन कायम होता है, जहां तहम्मुल है वही अमन कायम होता है, जहां चश्म पोशी और नजर अंदाजी की सिफत है वही अमन कायम होता है। वरना हुजूर भी इंसान थे, सरकार की बीवियां भी इंसान थी, मगर आपने देखा होगा उन इंसानों के दिल को मुस्तखर करना किस कदर हुजूर की जिंदगी का एक जबरदस्त मौजज़ा है। सरकार की अपनी बीवी के घर में क़याम फरमाया, दूसरी बीवी ने खाना बना के भेज दिया है, वो और सैयदा आयशा को गुस्सा आया, एक तमाचा मारती है वो कि मेरे घर में मुस्तफा की बारी है, हुजूर मेरे घर क़याम फरमा है, खाना मैं बना रही हूँ, तो उन्होंने खाना बना के मेरे घर में क्यों भेज दिया। एक सौतन होने के नाते जो एक इंसानी कमजोरियां होती है, बहैसियत इंसान, उसी कमजोरी के नाते सैयदा आयशा ने एक तमाचा अपनी उस सरकार की दूसरी बीवी की कनीज को उन्होंने मार दिया, हाथ से कटोरा गिरा, सारा खाना नीचे गिर गया। हुजूर की जगह कोई दूसरा शौहर होता तो कहता कि वो तुम भी मेरी बीवी हो, वो भी मेरी बीवी है, अगर उसने खाना बना के पहले भेज दिया तो तुम मारने वाली कौन होती हो। मैं तेरी निगरानी मैं करता हूँ, उनकी भी निगरानी मैं करता हूँ, तेरे नाम नफ्के का इंतजाम मैं करता हूँ, उनका भी इंतजाम मैं करता हूँ, फिर तुम कौन है उसके कनीज को मारने वाली। फिर वहां एक नया रुख ले लेता वो मामला, 2-4 तमाचा दूसरा शौहर कोई होता तो मारता, लड़ाई झगड़े में वो घर बदल जाता। तो फिर मगर हुजूर ने ये नहीं कहा कि उन्होंने कुछ पा के फूंक दिया आयशा को ताकि ऐसा हो जाए। हुजूर एक मॉडल है, क़यामत तक के लोग इसी तरह से अमन कायम कर सकते हैं। हुजूर की जिंदगी हमारे लिए उस बेहतरीन उसवे हसना है, रोल मॉडल है। क़यामत तक के लोगों के लिए, गुलाम के लिए, आका के लिए, नौकर के लिए, औरत के लिए, मर्द के लिए, शौहर के लिए, बीवी के लिए, भाई के लिए, एवरी डिपार्टमेंट्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज, इंसानी जिंदगी के तमाम क्षेत्र के लिए हुजूर नमूना है। सरकार दो जहां ने बता दिया कि कोई चमत्कार करके घर में अमन कायम नहीं होता है, आप कोई फूंक फांक करके घर में
امن قائم نہیں ہوتا ہے. مصطفیٰ کہتے ہیں انسانی کوالٹیز ہے صبر, انسانی کوالٹیز ہے تحمل, انسانی کوالٹیز ہے خاموشی. یہ ایسے اوصاف ہیں جس سے گھر میں بھی, سماج میں بھی, محلے میں بھی, مدرسے میں بھی, اسکول میں بھی, پارلیمنٹ میں بھی, اسمبلی میں بھی, ہر جگہ امن ہو سکتا. اس سے ہٹ کے وہ صاحب عامل کے پاس جا کے دعا تعویذ کروا کے اپنے بیٹے کی فطرت کو نہیں بدلا جا سکتا. نہیں سنا آپ نے, اگر زمین سڑی ہوئی ہو تو وہاں 1,00,000 تعویذ مادہ دے کر اس زمین سے اچھی فصل پیدا نہیں کی جا سکتی. زمین کی فطرت نہیں بدلی جا سکتی. اگر ماں اگر چڑیل ہو اور باپ اگر بدماش ہو تو کبھی اس چڑیل کے پیٹ سے کتب اور ابدال نہیں پیدا ہوگا. اور بچہ جب پیدا ہو جائے 1,00,000 تعویذ دینے سے وہ نیک نہیں ہوتا. اب عالم صاحب سے تعویذ دے دیجئے, عامل صاحب سے تعویذ دے دیجئے. 1,00,000 تعویذ آم کے پیڑ میں باندھ دے, آم کا پیڑ کا سیب لا دے گا؟ نہیں لائے گا. 1,00,000 تعویذ گیہوں کے پودے میں باندھ دے, کیا وہاں سے باسمتی چاول ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا. نیچرل سسٹم, یہ دنیا کا سارا کام فطرت کے قانون پہ چل رہا ہے. رات دن کا بدلنا, موسم کا بدلنا, بچے کا پیدا ہونا, جوان ہونا, بوڑھا ہونا, مر جانا, یہ موسم کی تبدیلی, یہ رات دن کی تبدیلی مجھ سے کچھ کہہ رہی ہے. دنیا کا سارا سسٹم فطرت کے اصول پہ چلتا ہے. چاہے لوگ بدل جائیں, لوگ دورے ہو جائیں, چاہے دنیا پاپ سے بھر جائے. کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ پاپ سے دنیا بھر گئی تو سورج اپنے اگنے کا ٹائم بدل لیا, چاند اپنے اگنے کا ٹائم بدل لیا, موسم اپنا رخ بدل لیا, برسات کا موسم سردی کے موسم میں تبدیل ہو گیا. ایسا نہیں ہوتا ہے. سارا کام فطرت کے اصول پہ, جو ایک نیچرل سسٹم ہے اسی حساب سے چلتا ہے. نیچرل سسٹم ہے امن رکھنے کے لیے صبر کرنا, امن رکھنے کے لیے قوت برداشت رکھنا, امن قائم کرنے کے لیے نظر انداز کرنا, امن قائم کرنے کے لیے چشم پوشی کرنا, امن قائم کرنے کے لیے محبت بھری باتیں کرنا, امن قائم کرنے کے لیے بیٹھ کے ڈائلاگ کرنا, نہ کہ غیبت کرنا اور دوسروں کے خلاف ایک محاذ کھڑا کر دینا. یہ ہے امن قائم کرنا گھر میں, سماج میں, جہاں بھی. حضور نے کچھ نہیں کہا سیدہ عائشہ سے کہ تم نے کنیز کے ہاتھ میں تماچا مار کے تم نے پیالے کو کیوں گرا دیا. حضور نے کچھ نہیں کہا. سرکار نیچے بیٹھ گئے اور ٹوٹے ہوئے سارے ٹکڑوں کو جمع کرنے لگے. اور جو کنیز آئی تھی دوسری آپ کی بیوی اور ہم مسلمانوں کی مقدس ماں کے یہاں سے, اس کنیز سے حضور کہتے ہیں کہ تیری ماں کو غصہ آ گیا ہے, تیری ماں کو غصہ آ گیا ہے. اس کے علاوہ سیدہ عائشہ سے کچھ نہیں کہہ رہے ہیں بلکہ ٹوٹے ہوئے ٹکڑے کو جمع کر رہے ہیں. سیدہ عائشہ جب دیکھ رہی ہیں کہ حضور نے مجھ سے کچھ نہیں کہا اور خود سے بیٹھ کر کے ٹوٹے ہوئے پیالے کے ٹکڑے کو جمع کرنے لگے اور کنیز سے کہتے ہیں کہ تمہاری امی کو غصہ آ گیا ہے, وہ بھی تو انسان تھی, سینہ ان کا ہل گیا. حضور کی خاموشی اور حضور کے صبر کی وجہ سے اندر سے وہ ندامت اور شرمندگی کی تصویر بن گئی. مصطفیٰ کے سامنے آ کے کہتی ہے حضور خطا تو ہو گئی, اب اس خطا کی تلافی کیسے ہوگی, یہ جرم کا داغ کیسے مٹے گا. مصطفیٰ کہتے ہیں اسی طرح کے پیالے میں اسی طرح کا کھانا یہ تیرے جرم کی تلافی ہے. سیدہ عائشہ نے بازار سے ویسا ہی پیالہ منگوایا, ویسا ہی کھانا تیار کر کے اس کے گھر میں بھیج دیا. کوئی دوسرا شخص اپنی بیوی کو اس قدر نادم و شرمندہ بنا نہیں سکتا تھا. ان کے جذبات کو اندر سے جھنجھوڑ کر اس کو اس طرح اپنی غلطی کا اقرار کرنے پر مجبور نہیں کر سکتا. اگر وہاں ڈنڈا چلتا, اگر وہاں زور سے آواز نکالی جاتی تو پھر سامنے والی وہ بگڑ جاتی, پر حضور کے صبر نے اسے موم بنا دیا, حضور کی خاموشی نے اسے منہ اندر سے جھنجھوڑ کے رکھ دیا. تو یہی یہ کام مصطفیٰ تک محدود نہیں ہے, حضور رول ماڈل ہے. اب قیامت تک جس گھر میں امن چاہیے وہاں بھی اسی طرح کا صبر کرنا ہوگا, اسی طرح کا تحمل کرنا ہوگا, اسی طرح کی چشم پوشی سے کام لینا ہوگا, اسی طرح سے نظر انداز کا پہلو اختیار کرنا پڑے گا. اس میں حضور کی سنت جہاں ہے وہاں لڑائیوں کا خاتمہ ہے, محبت کا گہوارہ گھر بن جاتا ہے. اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں امن قائم کرنے کا, اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے. آپ نے آزما لیا زندگی میں ریلیکس اور انجوائے کرنے کے لیے, آپ نے کیا نہیں کیا. ہمارے بچوں نے جوکر کی طرح چاروں طرف سے بال مونڈ کے عورتوں کی چوٹی کی طرف بال رکھا. کیوں رکھا؟ تاکہ زندگی میں انجوائے کریں, زندگی میں مزہ مل جائے, تاکہ ریلیکس کریں, تاکہ مستی کریں. اب آپ نے تو دیکھ لیا کہ وہ لڑکے مستی کرنے کے بجائے پستی میں تباہی بربادی میں چلے گئے. وہ لڑکے نہ
DM बन सके, न चपरासी बनने के काबिल रहे। बाप की जमीन भी बिक गई, उसको पढ़ाने के दिल्ली में भेजा। वह सिर्फ हेयर स्टाइल में और जोकरों की तरह फटा हुआ पैंट पहना उसने अपने हाथ में धागा बांधा, पाँव में उन्होंने धागा बांधा, सीने में सकरी और चैन पहन ली और हाथ में अंगूठी सोने की पहन ली और अपना पूरा जोग्राफिया उन्होंने फिल्म के हीरो की तरह बना लिया। उससे भी नहीं रहा गया तो दाढ़ी रख लिया, जो दाढ़ी रखने के लिए हम लोग कहते थे लोगों से कि दाढ़ी रखो वरना नामर्द बन जाओगे, क्योंकि सर के बाल का गहरा रिश्ता है कुव्वत मर्दानगी से और दाढ़ी के बाल का भी गहरा रिश्ता है कुव्वत मर्दानगी से। अगर यकीन नहीं आए तो जिसके सर का बाल खुद ब खुद गिर जाता है, वो गंजा हो जाता है, गंजा पैदा होता है, वो 110% वो नामर्दगी होता है, क्योंकि नाम कुव्वत मर्दानगी के साथ सर के बाल का बड़ा गहरा रिश्ता है और साथ दाढ़ी के बाल का भी। और जो दाढ़ी मूंड दे कुव्वत मर्दानगी का खून करता है। अगर उसका बच्चा मूंड दे तो समझ लें कि धीरे धीरे नामर्दी की तरफ उसका खानदान बढ़ता जाता है। हकीमों और तबीबों ने कहा है कि जो दाढ़ी मूंडे उनका बेटा मुंडवाए, उनका पोता मुंडवाए, पोते का बेटा मुंडवाए, फिर उसका पोता मुंडवाए, 6 नस्ल के बाद जो 7वीं नस्ल पैदा होगी वो नामर्दों की पैदा होगी। नामर्द होंगे, हिजड़े पैदा होंगे, वो औरतों के काबिल नहीं रहेंगे, औरतों की बढ़ती हुई तादाद होगी और मर्द उधर नामर्द हो जाएंगे। ये बताएं कि जिस औरत के बदन में ख्वाहिशात की आग लगी हुई है वो उसकी तकमील के लिए कहां जाएंगी? उनका शौहर तो हिजड़ा है, शादी तो कर लिया है मगर वो नामर्द है। यही वजह है कि अमेरिका और यूरोप में आदत की खराबी की वजह से जो एक हंगामा बपा है वो मर्द ही अब नहीं रह रहे हैं। वहां गुटखा खाना तुमसे पहले से है, वहां सिगरेट, नशीली सिगरेट पीना तुमसे पहले से है, वहां नाइट क्लब में रात भर शराब पी के डांस करना वहां बहुत पहले से है। अपनी बीवी में दिल लगे दूसरों के साथ गलत ताल्लुकात कायम करना ये वहां नफ्स की पैरवी बहुत पहले से है। वहां औरतों के बजाय मर्दों से इस्लामबाजी करना वहां बहुत पहले से है। औरतों का मर्दों से हटकर कुत्ता पाल करके कुत्तों से सोहबतें करवाना ये कैरेक्टर अमेरिका और यूरोप में बहुत पहले से है। हिंदुस्तान के लोग तो इस तरह के जुमले को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे क्योंकि यहाँ ऐसा कल्चर पैदा नहीं हुआ है। इसलिए अमेरिका जाने की तमन्ना छोड़ दे, अपने मुल्क की फजाओं को सलाम कर। जो बीमारियां वहां हैं वो यहाँ नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। वहां की खातून कुत्ता पालती है, क्योंकि वहां के मर्द उस खातून के काबिल नहीं है, तो वो अपनी ख्वाहिशात की तकमील उन कुत्तों से करवाती है, जो काहे बगाहे हिंदुस्तान में भी देखने को मिलता है। जब मर्द नामर्द हो जाएंगे तो औरतें कुत्तों के पास जाएंगी, और जब मर्द औरतों के पास न जाके मर्दों की तरफ रुख करेंगे वहां होमोसेक्सुअलिटी की वजह से खतरनाक बीमारियां जन्म लेंगी। इसलिए एड्स की बीमारी अमेरिका और यूरोप में, खतरनाक जिनसी बीमारियां अमेरिका और यूरोप में, उसका कोई टोकने वाला नहीं है, कोई समझाने वाला नहीं है। मगर इस्लाम तुम्हें समझाता है, फ्रॉम द क्रेडल टू द ग्रेव, मां की गोद से लेकर कब्र की गोद तक जिंदगी से कंसर्निंग जो भी मैटर है सब में इस्लाम तेरी रहनुमाई करता है। यहाँ तक के नमाज कैसे पढ़े, रोजा कैसे रखे, ज़कात कैसे दे वो तो बताता ही है। बच्चा पैदा हो तो कान में आजान कैसे दे, इकामत कैसे कहे, उसमें बच्चों की तहनीक कैसे करवाए, नेक लोगों का लुआब दहन, बच्चों की पहली ग़िज़ा कैसे बनाए। जब बच्चा 4 साल का हो तो नमाज पढ़ने का उसको उसकी बिस्मिल्लाह खानी कैसे करवाए। जब 7 साल का हो तो नमाज का हुक्म कैसे दे, और जब 10 साल का हो तो मार के उसको नमाज पढ़ाए और उन बच्चों को कोई हुनर सिखा दे। और जब 18 साल का हो तो जवान हो बच्चा तो मैं शादी करवा दूं, शादी में ताखीर न करूं वरना बच्चों की आदत खराब हो जाएगी। बच्चे का पांव फिसलेगा तो माँ बाप उस जुर्म में शरीक समझे जाएंगे। जिना करेगा बेटा मगर शरीक समझे जाएगा बाप, जिना करेगी बेटी, जिना करवाएगी बेटी मगर उस जुर्म में माँ बाप शरीक समझे जाएंगे। क्यों? ये निकाह में ताखीर करते हैं। हर चीज का एक वक्त है। 2 साल तक बच्चा माँ का दूध पिएगा, 2 साल के बाद माँ का दूध बच्चों के लिए जहर है। वही दूध जो 2 साल तक में एंटीबायोटिक थी उसके लिए, वही दूध जो उसके लिए बेहतरीन फूड, बेहतरीन मेडिसिन और बेहतरीन इम्यूनिटी पावर देने वाला सबसे शानदार ग़िज़ा है वो दूध माँ का। और वही दूध 2 साल के बाद बच्चों के लिए जहर है। वह माँ डाइन है जो 2 साल के बाद अपने बच्चों को दूध पिलाती है। वह माँ बच्चों की कातिल है जो 2 साल के बाद अपने बच्चों को दूध पिलाती है। 2 साल के बाद वह दूध जहर होता है। मगर बदन को दूध चाहिए तो अल्लाह ने उसका अल्टरनेट इंतजाम किया है। 2 साल तक माँ का दूध पी और 2 साल के बाद गाय का दूध पी, भैंस का दूध पी, बकरी का दूध पी। और ये दूध 90 साल का बूढ़ा भी पिएगा और 3 साल का बच्चा भी पिएगा और सबके बदन के लिए वह दूध फिट है। इससे बेहतर कोई ग़िज़ा नहीं है। तो अल्लाह ने इंतजाम किया है। तो जिस तरह
2 साल तक दूध है, उसके बाद और ग़िज़ा है। 4 साल जब बच्चे की उम्र हो, बिस्मिल्लाह खानी हो, 4 साल 4 महीना 4 दिन, और 7 साल की जब उम्र हो तो हर बाप पे लाजिम है कि बच्चों को नमाज का आदेश दे। मुरू औलादकुम बिस्सलात व हुम अबनाउ सब'i सिनीन, हदीस में आया है अपने बच्चों को आदेश दे नमाज का जब उसकी उम्र 7 साल हो। और अगर कभी पढ़ेगा कभी छोड़ेगा नमाज, फर्ज अभी तो हुई नहीं है, लेकिन जब 10 साल उम्र हो नमाजी ना बने तो मार के नमाजी बना। वद्रिबूहुम अलैहा व हुम अबनाउ 10 सिनीन, जब 10 साल बच्चे की उम्र हो मार के नमाजी बना दे, ताकि बच्चों के दिमाग में ये रहे कि जिंदा रहने के लिए खाना जरूरी है, उसी तरह मुसलमान बने रहने के लिए नमाज पढ़ना जरूरी है। और जिस माँ बाप ने बच्चों की तरबियत नहीं की, उसकी सोच ऐसी बन गई कि नमाज एक ऑप्शनल चीज है, पढ़े तो ठीक है, नहीं पढ़े तो ठीक है, जुलूस निकालना बड़ी चीज है, वैसे पाक का बकरा ज़िब्ह करना बड़ी चीज है, और साहब मुहर्रम का खिचड़ा बड़ी चीज है, मज़ार पे जाना, चादर और संदल का जुलूस निकालना बड़ी चीज है। तो हमने इसको फर्ज समझ लिया, और जो फर्ज आज़म है सबसे बड़ा फर्ज, और जिसका छोड़ना गुनाह आज़म है, नमाज फर्ज आज़म है, हज से भी बड़ा फर्ज है। हज सब पर फर्ज नहीं है जो साहिब माल हो, जो साहिब इस्तिताअत हो, ज़कात सब पर फर्ज नहीं है जो साहिब माल हो, मगर नमाज सब पर फर्ज है, अमीर पर भी, गरीब पर भी, औरत और मर्द, हर आकिल बालिग मर्द, औरत, देहाती, शहरी, कंगाल, अपाहिज, सब पर फर्ज है। ना खड़ा हो सकता हो तो बैठ के पढ़े, बैठ न सकता हो तो लेट के पढ़े, लेट न सकता हो तो इशारे से पढ़े, मरते दिन तक नमाज माफ नहीं है। क्यों? जमीन अल्लाह की दी हुई, सांस अल्लाह की, ऑक्सीजन अल्लाह की दी हुई, सब कुछ अल्लाह का, तो अल्लाह की नेमत का शुक्र अदा करने का तरीका है ये नमाज, ताकि रोजाना कम से कम 24 घंटे अल्लाह की जमीन पे रहे, अल्लाह का खाना खाएं तो 5 टाइम अल्लाह को सजदा रेज़ होके उस नेमत का शुक्र अदा करे। नमाज पढ़ना सबसे बड़ा फर्ज, नमाज छोड़ना सबसे बड़ा गुनाह, जिना करने से भी बड़ा गुनाह, शराब पीने से भी बड़ा गुनाह। कोई 10 साल जिना करे, तौबा करे, अल्लाह माफ कर देगा, लेकिन कोई 10 साल नमाज ना पढ़े, वह 1 लाख बार तौबा करे, वह 10 साल की नमाज उसके जिम्मे से साबित नहीं होगी। वह 50 हज कर ले, ये 10 साल जो नमाज उसके जिम्मे कज़ा है ये माफ नहीं होगी, उसको तो बतौर कज़ा पढ़ना ही पड़ेगा। सारे उलमा, सारे मुफ्तियाने किराम फतवा देंगे, वह 10 साल की नमाजें जो उसके जिम्मे हैं, उस नमाज को अदा करना होगा, पढ़ना पड़ेगा। चाहे 50 हज कर ले, 50 बार उम्रा कर ले, चाहे 1 करोड़ बार तौबा कर ले, या 10 साल की नमाज अदा करनी ही पड़ेगी। इसलिए इस्लाम कहता है, और हुजूर ने फरमाया, जब बच्चे की उम्र 7 साल हो तो नमाज का हुक्म दे, कभी पढ़ेगा कभी छोड़ेगा, और जब 10 साल का हो मार के नमाजी बना, तेरे डर से नमाजी बन जाएगा। और जब 15-12 साल में नमाज फर्ज हुई तो फिर उससे पहले ही वह तेरे डर से, मार के डर से नमाजी बन चुका होगा, और जिस वक्त नमाज फर्ज हुई उसके बाद से कज़ा करने के बारे में सोचेगा ही नहीं। ये नमाज उसकी जिंदगी की आदत सानिया बन जाएगी। जिंदा रहने के लिए नींद जरूरी, जिंदा रहने के लिए खाना जरूरी, जिंदा रहने के लिए ये जरूरी चीजें हैं, उसी तरह मुसलमान बने रहने के लिए नमाज पढ़ना जरूरी है। मगर चूंकि हमने ध्यान नहीं दिया, हमने तरबियत नहीं की, नतीजे में बच्चा नमाज को ऑप्शनल चीज समझ लिया। पढ़े लिखे लोग भी इसको ऑप्शनल चीज समझ लिए कि जरूरी है फातिहा पढ़ना, उर्स करना, बगदाद जाना, अजमेर जाना। बगदाद जाना फर्ज नहीं है, नमाज पढ़ना फर्ज है। अजमेर जाना फर्ज नहीं है, नमाज पढ़ना फर्ज है। मदीना जाना फर्ज नहीं है, नमाज पढ़ना फर्ज है। मदीने में मरना कमाल नहीं है। आला हजरत से कहा गया था कि आप पूरी दुनिया के जबरदस्त आलिम है, आप हरम ही में रह जाए। सारी दुनिया की तमन्ना है कि मक्के मदीने में रह जाऊं, आप यही रह जाए, आपके लिए मकान का इंतजाम कर देंगे, आपके लिए अरब के खातून से निकाह का इंतजाम कर देंगे, आप यही रहें। पर आला हजरत ने क्या बताया उन्हें कि मदीने में रहना मरना कमाल नहीं है, ये कमाल तो है, बहुत बड़ा कमाल है कि जो मदीने में मरे बकी में दफन हो, वह बगैर बख्शे बख्शाए वो जन्नती है। ये कमाल तो है, पर इससे बड़ा कमाल ये है कि मदीने का पैगाम हिंदुस्तान में आम कर देना, ये बड़ा काम है। मदीने वाले का पैगाम दुनिया के गोशे गोशे में फैलाना, ये कमाल की बात है। मदीने वाले का काम करना ये बड़ा काम है। अगर आज आला हजरत हिंदुस्तान में नहीं आते, हिंदुस्तान में कबर नहीं बनती, तो आज ये करोड़ों हिंदुस्तानी
जो मदीने की हाजिरी की तड़प सीने में पाल रहा है, ये तड़प कहां से पैदा होगी? ये आज करोड़ों हिंदुस्तानी जो गुंबद खतरा देखना चाहता है, ये तड़प कैसे पैदा होती? और फिर हिंदुस्तान में आज 40 करोड़ मुसलमान हैं, इन मुसलमानों का ईमान कैसे महफूज रहता? ईमान के लूटने वाले कदम कदम पे थे, तो अपना मदीने में मर जाना, अपना जन्नत चला जाना, ये बहुत बड़ा कमाल नहीं है। करोड़ों को जहन्नम से बचाना, ये कमाल की बात है। ये काम किया है आला हजरत ने। ये अजमेर का चरसी मुजाविर क्या जाने रजा किसका नाम है? ये अजमेर का चप्पल चोर मुजाविर क्या जाने रजा किसका नाम है? ये अजमेर का औरतों का पर्स चोरी करने वाला, ये क्या जाने रजा किसका नाम है? ये फूल बेचकर, चादर बेचकर पेट पालने वाला, ये क्या जाने रजा किसका नाम है? तुम्हारी तो भलाई इसी में है कि पेट पालता रहा, फूल बेचता रहा, चादर बेचता रहा। रजा के सलाम से मत टकराना, रजा के मसलक से मत टकराना। रजा अपना बेटा फूल बेचने वाला छोड़ के नहीं मरा, और चादर बेचने वाला बेटा छोड़ के नहीं मरा। रजा सारी जिंदगी 1000 के करीब किताबें लिखकर उन्होंने मसलक के अहले सुन्नत का तहफ्फुज किया है, ताजदारे खत्म नबूवत के नामूस का तहफ्फुज किया है। वह मुहाफिजे नामूस रिसालत बनकर हिंदुस्तान में पहरा देता रहा, यहाँ तक कि जिस जबान में इस्लाम का मुखालिफ आता रहा, उसी जबान में जवाब दिया। इस्लाम पे आने वाले गर्द को हटाया है रजा ने, इस्लाम का चेहरा चमकाया है रजा ने, ईमान बचाया है रजा ने। हिंदुस्तान का चमन लगाया है गरीब नवाज। उस चमन लगाने वाले को दर्द होता है कि चमन उजड़ने न पाए। किसी ने बाग लगाया है, वह बाग मुरझाने लगे तो चमन लगाने वाले का दिल मुरझाने लगता है। और अगर कोई उसके बाग में पानी डालकर दरख्त को जलने से बचा दे, बाग माली का दिल खुश हो जाता है। ये चरसी दूध आला हजरत को क्या जाने? गरीब नवाज की कब्र खोद के देख ले। हिंदुस्तान में इल्म का, इस्लाम का सूरज चमकाने वाला, 90 लाख काफिरों को मोमिन बनाने वाला, हिंदुस्तान की मस्जिदों, मदरसों, चेहरों पे दाढ़ियां, सरों पे पगड़ियां चमकाने वाली जात गरीब नवाज की जात गिरामी है। तो जिसने हिंदुस्तान को इस्लामिस्तान बनाया है, ये चमन बनाया है, इसने चमन लगाया है। आज से 100 साल पहले उस चमन को ताराज करने वाली ताकतें हिंदुस्तान में आ रही थी। यहाँ तक कि वहाबी नजदी तहरीर इस चमन को उजाड़ रही थी। ये बता दे, इस चमन को उजड़ने से बचाया किसने है? इस दरख्त को जलने से किसने बचाया है? गरीब नवाज ने चमन लगाया है। और जब उस चमन को जला रहे थे लोग, अहमद रजा ने 1000 किताबें लिखकर उस चमन को उजड़ने से बचाया है, करोड़ों को काफिर होने से बचाया है। तो गरीब नवाज तुम जैसे चोरों को देखकर खुश नहीं होंगे, वो अहमद रजा के नाम से खुश होते होंगे। गरीब नवाज का चेहरा कब्र में दमक रहा होता है जब अहमद रजा का नाम वहां आता है, जब उनका सलाम वहां पढ़ा जाता है। ये चरसी क्या जाने रजा किसका नाम है? रजा उसका नाम है जो जाते जाते मुफ्ती आजम हिंद जैसा बेटा छोड़ के चला गया, जाते जाते हुज्जतुल इस्लाम जैसा बेटा छोड़ के चला गया। तू फूल बेचता रहा, अपना पेट पालता रहा, अपना घर मकान खरीदता रहा, और उसमें भी रजा का एहसान है। जब ये वहाबी तहरीक इंडिया आई थी और वह कह रही थी कि हिंदू खड़ा बुत को पूजता है और ये सुन्नी मुसलमान पड़े हुए बुत को पूजता है, जो कब्रिस्तान को, कब्र अनवर को अल्लाह के वलियों की कब्रों को पड़ा हुआ बुत कहता था, जो तहरीक पड़ा हुआ बुत कह रही थी, और वहां जाने वालों को मुशरिक कह रही थी। यह सुन्नी मुसलमान कब्र पूजवा है, कब्र का पूजने वाला है। ये गैर मुस्लिम खड़ा बुत पूजता है और ये पड़े हुए बुत को पूजता है। अगर ये तहरीक धीरे धीरे चल चल के अजमेर आ गई होती, जो तहरीक नजद से चली थी, सहारनपुर ने उस तहरीक को पानी दिया, नदवा देवबंद ने उस तहरीक को पानी दिया, तक़ियतुल ईमान ने उस वहाबी तहरीक को पानी देके उससे मजबूत किया। अब वह धीरे धीरे नजद और सहारनपुर और लखनऊ से होता हुआ वो तहरीक का असर अजमेर की तरफ बढ़ रहा था। दिल्ली में जिन जिन खानकाहों पे कब्जा उसका हो गया, वहाँ चादर पोशी बंद है, वहाँ गुलपोशी बंद है, वहाँ सलाम बंद है, वहाँ फातिहा बंद है। अगर वो तहरीक अजमेर पहुंच गई होती और यहाँ की हाजिरी बंद हो गई होती और गुलपोशी चादर पोशी बंद हो जाती और हिंदुस्तान के ज़ायरीन का आना बंद हो जाता, ये बता दे मक्कार मुजाविर, ये तेरा पेट कैसे भरता, ये तेरा घर कैसे बनता, ये तेरे बच्चे कैसे पलते? अगर हिंदुस्तान के ज़ाहिर ही अजमेर नहीं आते और फिर वहां से उनके जरिए से तेरी आमदनी कहां से आती? और किसने उस तहरीक की कमर तोड़ दी, उसको अजमेर नहीं पहुंचने दिया, उस तहरीक के ताबूत में आखिरी कील ठोक दी, उस तहरीक के नदवा, तहरीक के वहाबियत को चूर चूर किया, कौन किया है? अगर
अगर सीने में अगर दिल जिंदा है तो बोलना पड़ेगा वो रजा के नेज़े की मार है कि अदू के सीने में गार है, किसी चारा जो इनका वार है, ये वार पार से पार है। वो आला हजरत का कलम था, जिस कलम ने उसकी कमर तोड़ दी, वहाबी तहरीक की कमर तोड़ दी, उसके ताबूत में आखिरी तीर ठोक दिया। आज अगर अजमेर बचा है, गुलपोशी बची है, चादर पोशी बची है, तो एहसान अहमद रजा का फाज़िले बरेलवी का है। इसलिए हिंदुस्तान के मुजाहिरों को अहमद रजा की कब्र को धो के पानी पीना चाहिए कि अगर ये ना होता तो मेरा पेट कैसे चलता। आज हिंदुस्तान में अगर सलाम सलामत है, फातिहा सलामत है, जुलूस मोहम्मदी का झंडा सलामत है, ये एहसान इन सभी ने इमाम अहमद रजा का फाज़िले बरेलवी का। ये अजमेर का चरसी मुजाविर ये क्या जाने कि रजा किसका नाम है। आला हजरत का बेटा आज भी फूल नहीं बेचता है, आला हजरत का बेटा आज भी चादर नहीं बेचता है। बीच में एक बात आ गई है, मैं इसको वजाहत करके उसके बाद फिर मैं आगे बढ़ जाऊं फिर तकरीर की तरफ। आला हजरत का बेटा आज भी चादर नहीं बेचता है। चादर वो बेचे जिसको बुखारी पढ़ाना नहीं आता है, फूल वो बेचे जो मदरसा चलाना नहीं आता है, चादर वो बेचेगा जिसको किताब लिखना नहीं आता है, फूल वो बेचेगा जिसको फतवा का जवाब देना नहीं आता है। रजा जाते जाते अपना एक बेटा छोड़ा मुफ्ती आजम हिंद, जो आलिम इस्लाम का जबरदस्त मुफ्ती बनकर फतवा देते रहे, किताबें लिखते रहे, मदरसा चलाते रहे और हजारों लाखों की भीड़ में जाके मसलक अहले सुन्नत की हिफाजत करते रहे। वो तो मुबल्लिग आज़म थे, मुफ्ती आज़म थे। दूसरा बेटा हुज्जतुल इस्लाम था, जो आलिमों का सरदार था, जो अरबी ज़बान में फसी बातें करता था। लाहौर का मुनाज़रा आज तक गवाह है। डॉक्टर इकबाल ने जब देखा उनको तो दंग रह गया, जब बेटा ऐसा ज़ाहिरी और बातिनी हुस्न से आरास्ता है, इनका बाप अहमद रजा खां कैसा होगा। उसको देख के आला हजरत को लोग समझते थे। तो और हुज्जतुल इस्लाम जाते जाते अपना बेटा मुफस्सिर आज़म हिंद इब्राहिम रजा को छोड़ के चला गया। वो सारी जिंदगी हिंदुस्तान में तफसीर कुरान सुनाते रहे, मंजर इस्लाम चलाते रहे और सुन्नियों के ईमान का तहफ्फुज़ करते रहे। कभी चादर फूल नहीं बेचा। ये रजा को क्या आप दिखलाएगा। रजा के हाथ से दीन का काम होता है, सुन्नियत का काम होता है, किताबें लिखी जाती हैं, फतवा लिखा जाता है। 200 साल से ज़ायद का अरसा गुजर गया रजा के घराने से फतवा लिखे हुए, और आज उस फतवे की धमक इस तरह है कि कल केस हुआ था कोर्ट में कि अजमेर के जो खुद्दाम है, इन खुद्दाम को आज दरगाह की आमदनी का हिस्सा मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो कोर्ट के जज ने कहा था अपने किसी बड़े आलिम की किताब प्रूफ के तौर पर पेश कीजिए कि इस आमदनी में आप खुद्दाम का हक है या नहीं है। उस वक्त वो नदवा से किताब नहीं लाया, वो सहारनपुर से किताब नहीं लाया। वो सहारनपुर की कौन सी किताब होगा जो खुद्दामों की आमदनी के जवाब में वो फतवा देगा। वो अगर नजर आई उसी किताब तो फतवा रज़विया नजर आई। आला हजरत की किताब को लेके कोर्ट में पहुंचा और कोर्ट के जज ने जब देखा आला हजरत ने लिखा है ये मज़ार पाक की खिदमत करने वाले खुद्दाम को भी उसमें से हिस्सा दिया जाएगा, तो अहमद रजा के फतवे से तो तेरा पेट बचा है, तेरा घर बचा है, तेरी रोजी बची है। तुझे तो अहमद रजा की चादर धो के पीना चाहिए, ना कि उसके सलाम पढ़ने वालों को खदेड़ना चाहिए, ना कि उसके आशिकों को मारना चाहिए। बदतमीज सुल्तानुल हिंद हिंदुस्तान का राजा है, राजा के पास सारा हिंदुस्तान जाएगा। हिंदुस्तान में कुछ लोग असमिया बोलते हैं, कुछ गुजराती बोलते हैं, कुछ लोग उड़िया बोलते हैं, कुछ लोग पंजाबी बोलते हैं, कुछ लोग तमिल बोलते हैं, कुछ लोग मलयालम बोलते हैं, कुछ लोग संस्कृत बोलते हैं। सुल्तानुल हिंद राजा है भारत का। तो दिल्ली का राजा तो नकली है, आज है कल खत्म, और असली राजा तो सुल्तानुल हिंद गरीब नवाज है जो 700 साल से पूरे भारत की निगरानी कर रहे हैं। तो दिल्ली का राजा नकली, अजमेर का राजा असली। तो सारा हिंदुस्तान अजमेर जाएगा। अब कोई असमिया में बोलेगा, कोई साहब तमिल में बोलेगा, कोई मलयालम में बोलेगा, कोई हिंदी में बोलेगा। बदतमीज तू मेहमानों को खदेड़ता है, कहां से पैसा कमाएगा। मेहमानों को लोग इज्जत देते हैं, हमारी इस्लामी तारीख रही है मुसलमानों को इज्जत देना, और तुमने मेहमानों को खदेड़ा है पुलिस वालों के साथ लेकर। अपनी रूसी में लात तुमने मारी है, अपनी इज्जत को तुमने खतरे में डाल दिया है। जब गिदड़ को मौत आती है तो वह शहद की तरफ भागता है। तुमने मेहमानों को मारा है, अल्लाह तेरी रोजी बंद कर देगा, अल्लाह तुझे खदेड़ के अजमेर से भगा देगा और रजा के मानने वालों को अजमेर में कब्जा दिला देगा। फिर वहां शान से हर मस्जिदों में मुस्तफा दाने रहमत पे लाखों सलाम पढ़ा जाएगा। मैं ये कहना चाहता हूँ, जब वह सुल्तान है और आया पूरे हिंदुस्तान
आसान से वहां जाएगी। तो कोई पढ़ेगा करोड़ों दरूद, कोई पढ़ेगा लाखों सलाम, कोई पढ़ेगा या नबी सलाम अलैक, कोई पढ़ेगा ऐ सलाम मुस्तफा से कह देना। जब राजा का दरबार है, जिस तरह से चाहे प्रजा अकीदत का इजहार करे, करने दे उसे। ये लोग जाते रहेंगे, वहाबियत का जनाजा उठता रहेगा, अहले सुन्नत का चेहरा चमकता रहेगा। जिस दिन सीना तेरा रोशन हो जाएगा, रजा के मानने वालों से चिढ़ेगा नहीं। तुमको डर लगता है ना, रजा जब यहाँ आ गए तो यहाँ पांव से कड़ा खत्म हो जाएगा, गले से चैन खत्म हो जाएगा, ये कब्र का तवाफ खत्म हो जाएगा। हाँ, रजा का नाम ही है मसलके रजा। जहाँ पहुंचा बिदअतें खत्म हो जाती है, सुन्नतों का राज कायम हो जाता है। सुन्नत और शरीयत का राज कायम होता है जब रजा का मसलक पहुंच जाता है। और जहाँ जहाँ जाहिल मुजाविर हैं, रजा से चिढ़ते हैं, वो वही हैं जिनको अपनी रोजी खतरे में नजर आती है। यहाँ आएंगे, इनका मसलक यहाँ आ गया तो फिर हमारी जहालत खतरे में पड़ जाएगी। आला हजरत फाजिल बरेलवी के बच्चों ने जब हदीस और कुरान की खिदमत शुरू की, अल्लाह ने उस पैठान को सौदागरान से उठा के वो इज्जत के आसमान पे पहुंचा दिया कि आज सारी दुनिया में रजा रजा हो रहा है। अमेरिका की मदरसे में तो रजा रजा है ही, जलसे में तो रजा रजा है ही, और मदरसे में खानकाहों में तो रजा रजा है ही। यहाँ तक कि बर्कली यूनिवर्सिटी में रजा रजा है, ऑक्सफोर्ड में रजा रजा है, ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज में रजा है। वहाँ उन पर पीएचडी की डिग्री पर मकालात लिखकर डॉक्टर की डिग्री हासिल की जा रही है। हिंदुस्तान की पटना यूनिवर्सिटी हो, जेएनयू हो, एएनयू हो, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी हो, मैसूर यूनिवर्सिटी हो, बम्बई यूनिवर्सिटी, दर्जनों यूनिवर्सिटीज में रजा पे मकालात लिखकर डॉक्टर की डिग्रियां हासिल की गई है। यूनिवर्सिटी में रजा रजा, कॉलेज में रजा रजा, और साहब स्कूल में रजा रजा, यहाँ के प्रिस्टीन यूनिवर्सिटी अमेरिका में रजा रजा। कहाँ तुम रोक पाएगा? तुम तो चादर बेचने से फुर्सत नहीं तो रजा को के नाम को तू क्या चढ़ा पाएगा? अमेरिका में रजा, हॉलैंड में रजा, श्रीलंका में रजा, मलेशिया में रजा। ऐसा लगता है कि बाकी रजा की गोहे हिमारा रजा का है, जिस हम तो देखिए वो इलाका रजा का है। रजा के नाम का मदरसा, रजा के नाम की खानकाह है, रजा के नाम की मस्जिद है, रजा का नाम रजा अकेला था। आज करोड़ों आदमी अपने नाम के साथ लफ्ज़ रजा लगाए हुआ है। एहसन रजा, मोहसिन रजा, फला रजा। ये रजा ऐसे नहीं होता कि हम लोगों ने दलाली की और रजा का खुतबा पढ़ा तो 10 आदमी ने रजा का नाम जान गया। हम लोग पैदा भी न हुए थे तो भी दुनिया में रजा रजा का चर्चा था। हम लोग नहीं रहेंगे तो भी रजा रजा रहेगा। क्यों? इज्जत देने वाला अल्लाह है, जलील करने वाला अल्लाह है। अल्लाह के फरिश्ते हैं जो घर घर रजा का पैगाम पहुंचा रहे हैं। जो अल्लाह के दीन का काम करेगा अल्लाह उसको बुलंद कर देता है। जो अपना खाएगा और नजर सिर्फ खाने पे रखेगा उसके बच्चे भूल जाएंगे। जो सिर्फ अपना पहनेगा, अपने बच्चों को पहनाएगा, दूसरे समाज में क्या हो रहा है किसी की खबर नहीं लेगा, उनके बच्चे उसको भूल जाएंगे। अपनी जमीन, अपना मकान, अपनी गाड़ी, अपनी बेटी, अपना बेटा करने वाला उनको समाज के लोगों को क्या मतलब है उससे? उनके अपने बेटे भी उसको भूल जाते हैं। लेकिन जो मजहब का काम करता है, वतन छोड़ता है अल्लाह के लिए, रात की नींद कुर्बान करता है अल्लाह के लिए, बच्चों की रोजी की फिक्र न करके दूसरों के ईमान के तहफ्फुज़ की फिक्र करता है, वतन छोड़ता है रब के लिए, दिन भर मेहनतें करता है रब के दीन के लिए, रब के दीन की खिदमत के लिए, तो अल्लाह तबारक व तआला उसे जमीन से उठा के इज्जत के आसमान पे पहुंचा देता है। तू जिया है मेरे लिए, तू मरा है मेरे लिए, अब तेरा नाम मैं मरने नहीं दूंगा। जब तक रहेगी दुनिया तब तक तेरी अजमत का खुतबा कहा जाता रहेगा। गौसे आजम पैदा हुए ईरान में, ईरान को छोड़ दिया, रात की नींद कुर्बान की, 40 साल तक ईशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ी, और आज टंका पूरी दुनिया में कादरियत का बज रहा है। अब्दुल कादिर अकेले थे और करोड़ों कादरी हैं जो गौसे आजम की गुलामी में जीने पर फख्र महसूस करते हैं। अब्दुल कादिर तन्हा था, वतन छोड़ा रब के लिए, रात की नींद कुर्बान की रब के लिए, अपना खाना पीना तैयार किया, अच्छा खाना पीना, सूखी रोटी खाना, दरख्त के पत्तों को खाना, और सारा काम ऐसा किया कि मदरसे को नई जिंदगी मिल गई, खतबत को नई जिंदगी मिल गई। खानका में खाते थे, पीर साहब सोते थे, और वहां पीर साहब के दिल में अल्लाह का डर डाल दिया। मदरसे में मौलवी से झगड़ते थे, उस मौलवी के दिल में अल्लाह का डर डाल दिया। बादशाह के घर में शराब और शबाब और नाचने वाली लौंडियां थी, बादशाहों के घर में तहज्जुद दाखिल कर दिया, और फिर मदरसा जिंदा हुआ।
खानका जिंदा हुई, मस्जिद का निजाम जिंदा हुआ, बादशाहों के घर में तकवा पहुंचा, तो जो हर महाज पे दीन को जिंदगी मिली, तो अल्लाह ने अब्दुल कादिर की जगह टाइटल मुहीउद्दीन दे दिया। या दीन का जिंदा करने वाला है, या दीन का जिंदा करने वाला। अब्दुल कादिर तुमने दीन को जिंदा किया, और जब तक दीन इस्लाम रहेगा तेरा डंका बजता रहेगा। गौसे आजम का डंका आज बज रहा है। उसी तरह गरीब नवाज पैदा हुए ईरान में। ईरान में बाग से बाग मिला, पंचक्की मिली, उसको बेच दिया, फिर पढ़ने निकल गए। 10, 20, 25 साल तक पढ़ते रहे, फिर आलिम फाजिल मुफ्ती हाफिज कारी बनने के बाद, और किताबों को पढ़ना और है, और बुजुर्गों की सोहबत में रह के प्रैक्टिकल में इस्लाम को देखना और है। आज चुके लोग किताब पढ़े और फौरन मस्जिद में आ गए, इसीलिए तकरीर से फितना पैदा होता है। और जहां कोई खिलाफे तबाह बात हुई, बस इसको छोड़ करके गांव से भाग जाता है। नहीं, अल्लाह का मुल्क तंग नहीं है, मैं चला जाऊंगा। मुस्तफा के गले में तो जालिमों ने चादर डाल के खींचा था। हुजूर हालत सजदा में है, जालिमों ने ऊंट की उजरी डाल दी थी, और हुजूर सजदे से सर नहीं उठा पा रहे थे। दुनिया के मालिक को मुख्तार, और वे काफिर हतारियां बजा बजा के हंस रहे थे हुजूर की इस हालत को देखकर। सरकार तबलीग इस्लाम के ताइफ है, वहां के मक्का के लोग ही वहां रहते थे, आपके खानदान के लोग थे। उन लोगों ने हुजूर का मजाक उड़ा के बच्चों को पीछे लगा दिया, यहां तक कि पत्थरों की बारिश करके लहू लहान कर दिया। तो आका अलैहिस्सलाम को इस तरह तकलीफें हुई, किसके बदले में? तबलीग दीन के बदले में, तबलीग इस्लाम के बदले में। सरकार दो जहां ने ये तबलीग नहीं जोड़ दी कि हम अल्लाह की बात बोलते हैं, लोग मुझे मारते हैं, अल्लाह की बात में बोलता लोग पत्थर बरसाते हैं। आप कहते नहीं, ये लोग मुझे जानते नहीं है। फरिश्ते आ गए, आप इशारा करें दोनों पहाड़ को मैं मिला दूं, ये सारे लोग पिस जाए। सरकार ने कहा मैं पिसने नहीं आया हूं, मैं तो दुआए हिदायत करने आया हूं, रहमतुल लिल आलमीन बन के आए थे। तो आप उसी मुस्तफा के नाइब हैं। आप वतन में गुस्सा बहुत ज्यादा है, मजाक के खिलाफ बात हुई तो बदतरीन बातें करने शुरू कर दिया। आप उस गांव में गाली सुनकर मार खा के रहे, और जिस दिन उस गांव के लोग नमाजी बन जाएंगे, वो आपका तलवा धो के पी के बोलेंगे मैंने गाली दी थी तुमको, अगर तुम उसी दिन गांव से चले गए होते तो आज हम नमाजी कैसे बनते। एहसान तुम्हारा है कि मेरी गाली पे सब्र करके तुमने हम सबों को जन्नत के करीब पहुंचा दिया है। इज्जतें उस वक्त मिलती है जब गाली सुन के आदमी रहता है। जो सिर्फ किताब पढ़ेगा उसको गुस्सा बहुत ज्यादा आएगा, और जो किसी वलियों की सोहबत में रहेगा वह सारा गुस्सा उसका पांव के नीचे दफन हो जाएगा। उसमें धैर्य पैदा होगा, उसमें पेशेंस से पैदा होगा। तो तू तजर्बात बुजुर्गों की सोहबत में रहने से इस्लाम को प्रैक्टिकल तौर पर देखने का मौका मिलता है। वो सरदार गरीब नवाज ने इल्म हासिल किया, हाफिज कारी आलिम मुफ्ती बने, फिर 20 साल तक उस्मान हारूनी की सोहबत में उनका बिस्तर ढोया, उनका बिस्तर ढोते रहे। किसी ने पूछा कि हुजूर हिंदुस्तान के हाकिम कैसे बन गए? कहा मैंने अपने मुर्शिद उस्मान हारूनी का बिस्तर 20 साल तक ढोया है, उसी खिदमत ने मुझे मखदूम बना दिया है। आलिमों की खिदमत करनी पड़ती है, उनकी सोहबत में रहा जाता है। आलिम वो है जिसको देखो तो खुदा याद आ जाए। ऐसा नहीं कि आलिम को देखो तो गुटखा याद आ जाए, आलिम के पास रहो तो बीड़ी याद आ जाए, आलिम के पास रहो तो अखबार की पढ़ाई याद आ जाए, आलिम के पास रहो तो फिल्म का चर्चा याद आ जाए, आलिम के पास रहो तो साहब नेतागिरी याद आ जाए। वो आलिम नहीं है, वो तुम्हारे ईमान का दुश्मन है, ईमान लूट लेगा। वो अस्तहा है जो तेरे ईमान को, तेरी जान को और तेरे ईमान को लूट के खा जाएगा। आलिम वो है जिनके पास जब भी जाओ तो सुनो कि वो कहता है कि अल्लाह ने ये कहा है, हुजूर ने ये कहा है, मुस्तफा बुजुर्गों ने ये कहा है। जिनके पास बैठो तो कुरान की बात बोले, हदीस की बात बोले, दीनदारी की बात बोले, अल्लाह से डराने की बात बोले। बुजुर्गों ने कहा उस आलिम के पांव को चूम लेना, वो तुम्हारे लिए इक्सीर हयात का दर्जा रखते हैं। उससे हटना मत, वो उससे हटना मत। ऐसे लोग अगर मिल जाए कहीं अल्लाह से डराने वाला, अल्लाह की बात करने वाला, उससे उसके करीब हो जाना या इक्सीर हयात का दर्जा रखती है। उनकी सोहबत है, उनसे करीब रहना। तो बहुत से लोगों को आपने देखा होगा, पीर साहब आ रहे हैं, गुटखा लोग ले जा रहे हैं, पीड़ी ले जा रहे हैं। साहब या रजनीगंधा मेरे मुर्शिद को बहुत पसंद है। उड़ीसा के चंद जाहिल रिमोट को रखे हुए हैं कि मेरे मुर्शिद इस रिमोट के जरिए टेलीविजन चलाते थे, और वो चला है रजा और दूसरे लोगों से लड़ाई करने के लिए। जो रिमोट रखा है मुर्शिद का रिमोट है, जो मुर्शिद उस रिमोट से चैनल बदल बदल के टीवी देखते थे, और वो टेलीविजन को रखा है कमरे में। ये मेरा मुर्शिद था जो टेलीविजन समाचार वो देखा करता था। समाचार में अधनंगी लड़कियां नाचती है, समाचार में निर्वस्त्र चुस्त
لباس پہن کے جیسے کوئی لباس ہی نہیں پہنی ہو وہ نیوز پڑھتی ہے. تو نیوز سننا ہی تھا تو اخبار پڑھ لیتے. یا ٹیلی ویژن میں دیکھنے کا کیا مطلب ہے؟ مطلب وہی ہے جب دلال قسم کے مرید موجود ہوں تو وہاں پیر صاحب کے بارے نیارے ہوتے ہیں. وہ کھاتا پیتا سوتا ہے, مرید بولتا ہے یہ نماز پڑھنے مکہ چلا گیا ہے, یہ نماز پڑھنے مدینہ چلا گیا ہے. وہ وہاں سوئے گا, مرید بولے گا یہ یہاں نہیں ہے, ان کا بدن یہاں ہے اور یہ نماز پڑھنے مکہ چلے گئے ہیں. پیر صاحب ٹیلی ویژن دیکھیں گے, بولیں گے وہ اس کی نظر ان کے چہرے پہ نہیں پڑتی ہے, اس کی نظر تو بہت پہنچی ہوئی ہے, وہ تو صرف خبریں سنتا ہے. آپ ٹیلی ویژن پہ عورتیں ہیں, عورتوں پہ نظر نہیں پڑتی ہے. تم جیسے دلال رہیں تو آدمی کھائے بھی پیے بھی زنا بھی کرے, شراب بھی پیے اور کتب اور ابدال بھی کہلا جائے. ایسے دلال موجود ہے جہاں اعلیٰ حضرت کے مسلک کے ماننے والے جیسے فالوور موجود رہے. اگر عالم علم نہیں ہے تو پیر نہیں ہوگا, تقوی نہیں ہے تو پیر نہیں ہوگا, ان کا سلسلہ وہاں سرکار تک نہیں پہنچا پیر نہیں ہوگا. چاہے مرید کیوں نہیں ہو گیا ہو, اگر شریعت کے خلاف عمل دیکھا تو بیت توڑ دے گا. یہ کون سکھاتا ہے؟ یہ برہمن بات کو مٹاتا ہے مسلک احمد رضا, شریعت اور سنت سے قریب کرتا مسلک احمد رضا. اگر امام غلط قرآن کو پڑھتا ہو نماز میں تو ہر مقتدی کو حق حاصل ہے کہ وہ امام کو ٹوکے, نماز نہیں ہوئی. اگر امام نے ایک سجدہ کیا اٹھ گیا, مقتدی پیچھے سے ٹوکے. یہ اسلام سکھاتا ہے کہ امام اگر غلطی کرے تو مقتدی اس کو ٹوک دے. یہ اسلام سکھاتا ہے پیر اگر غلطی کرے تو مرید اس کو ٹوک دیا کرے. یہ مسلک اعلیٰ حضرت سکھاتا ہے. اور وہاں دلال کی مرید سے کھا کے سوئے اور پھر بھی مرید بولے کہ یہ کعبہ میں نماز پڑھ رہا ہے, تو ایسے لوگوں کو تو وارے نیارے ہیں, مستیاں ہی مستیاں ہیں. ٹیلی ویژن کو ریموٹ پہ رکھا ہے تو ان لوگوں نے ٹیلی ویژن چلاتے پیر کو دیکھا ہے, گٹکا کھاتے پیر کو دیکھا ہے, 24 گھنٹے رہ کر نماز چھوڑتے ہوئے دیکھا ہے. لیکن ابھی تو 4 سال پہلے ہندوستان میں ایک ایسا پیر دیکھا ہے جس پیر کو جب بھی دیکھا تلاوت قرآن کرتا دیکھا, جب بھی دیکھا مفتیوں کی چھرموٹ میں دیکھا, جب بھی دیکھا فتوے کا جواب دیتا دیکھا, جب بھی دیکھا کتاب کی املا کرواتا دیکھا, جب بھی دیکھا امر بالمعروف کرتا دیکھا. جامعۃ رضا میں ہے درس بخاری دے رہے ہیں, رضا گیسٹ ہاؤس میں ہے امر بالمعروف کر رہے ہیں, اپنے گھر کے اندر ہے اپنے بیٹے کو بخاری پڑھا رہے ہیں, امریکہ میں ہے مریدوں کو امر بالمعروف کر رہے ہیں, بہار کے دیہات میں ہے وہاں لوگوں کو مسلک کے حق کی رسی مضبوطی سے پکڑنے کے لیے واز کر رہے ہیں, اور واز سے فرصت ملی نماز پڑھ رہے ہیں, نماز پڑھنے کے بعد موقع ملا درود پڑھ رہے ہیں. یعنی جب بھی دیکھا نہ گٹکا کھاتے دیکھا نہ سگریٹ پیتے دیکھا, جب سوئے ہیں تو سوئے ہیں, جگہ ہیں تو کتاب لکھ رہے ہیں, لکھوا رہے ہیں, فتوے کا جواب دے رہے ہیں, ذکر و اذکار کر رہے ہیں. اس زمانے کا وہ قطب کون تھا جو غوث اعظم کی یاد تازہ کر گیا, جو داؤد طائی کی یاد تازہ کر گیا؟ وہ کون تھا اس زمانے کا جو ہمیں اولیاء الصالحین جس کی کتابوں جس کا چرچا میں کتابوں میں پڑھتا ہو 1000 سال پہلے کے بزرگ ان کی یاد تازہ کر گیا؟ وہ ذاتی نائب غوث اعظم قطب الارشاد حضور اختر رضا خان اظہری تاج الشریعہ کے کہ جب بھی دیکھا کتاب پڑھتا دیکھا, فتویٰ کا جواب دیتا دیکھا. بس تھوڑی دیر آپ اس کو برداشت کر لیں. اور اب میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ اجمیر کے مجاور نے جو حرکتیں کی ہیں وہ حرکتیں وہ اپنے پاؤں میں کلہاڑی مارنے کے برابر حرکتیں کی ہیں. اعلیٰ حضرت اپنے باپ کا خطبہ کبھی نہیں پڑھتے ہیں. اعلیٰ حضرت ہمیشہ مصطفیٰ جان رحمت کی عزت و عظمت کا خطبہ پڑھتے ہیں. انہوں نے قریب کیا ہے, جو بھی رضا سے قریب ہوا وہ بغداد اور مدینے سے قریب ہو گیا, اور جو وہاں سے دور ہوا یا تو نجدی وہابی ہو جاتا ہے یا دشمنی میں رافضی اور تفضیلی ہو جاتا ہے. اس لیے ہندوستان میں تفضیلیت کا فتنہ دھیرے دھیرے بڑھتا جا رہا ہے. ایک طرف نجدی وہابی ہے اور ایک طرف تفضیلی اور رافضی ہے جو صحابہ سے بغض کر کے دین ایمان لوگوں کا چھین رہے ہیں, اور ایک طرف وہ نجدی وہابی ہے جو سنیوں کا ایمان لوٹنے کا پریاس کر رہے ہیں. ایسے میں کون سی طاقت آپ کے پاس ہے, کون سا ہتھیار آپ کے پاس ہے جس کو لے کر کے آپ ان دونوں محاذ پہ جنگ جیت سکتے ہیں؟ اس طاقت کا نام امام احمد رضا خان فاضل بریلوی ہے. اس طاقت کا نام مسلک رضا ہے. اس لیے کہ رضا بھی دوسرے بزرگوں کی طرح ایک بزرگ ہوتے جو کھاتے پیتے اور چندر چادر گاگر کرتے اور انتقال کر جاتے, تو صرف عرس لگتا اور 2-4-5 ہزار ان کے مرید آتے چادر چڑھا کے سندر کا جلوس نکال کے چلے جاتے. اس کا چرچا آج جلسے میں نہیں ہوتا, ان کا سلام لاکھوں مدرسے میں نہیں پڑھا جاتا, ان کی تحریک امریکہ سے لے کے یورپ تک مسلمانوں کے ایمان کو تازہ کرنے میں مدد نہیں کرتی. مگر چونکہ رضا نے 1000 کی کتابیں لکھ کر وہ ہتھیار ہم کو دیا ہے,
आज इल्म गैब पर मुनाजरा ऑस्ट्रेलिया में होगा। हथियार कहां से जाएगा? हथियार बंदा की सुदराज के यहाँ से जाएगा या खुद गरीब नवाज के यहाँ से जाएगा? गरीब नवाज अजमेर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के यहाँ हाजिरी देंगे, वहाँ दुआ कबूल होती है। वहाँ रज़ा ने कहा है कि जो दुआ कबूल होने की जगह है उसमें रोज़े गरीब नवाज एक बहुत बड़ी जगह है जहाँ दुआ कबूल होती है। ये बोलता है रज़ा ने गरीब नवाज की शान में कुछ नहीं लिखा। मैं कहता हूँ सालिम 1 लाख मनक़बत एक पल्ले में रख दे और अहमद रज़ा का एक फतवा एक पल्ले में रख दे। वो फतवा यही था कि रज़ा के बाप ने कहा दुआ की कबूलियत की जगह है अरफात, कबूलियत की जगहों में से एक जगह है मुज़दलिफा, एक है मिना, एक है सफा, एक है मरवा, एक है मिलन अफजरेन, एक है मुस्तजा, एक है मुल्तजम, एक है बाबे काबा, एक है हकीम, एक है मिसाब रहमत के नीचे, एक है मुस्तजा, एक है मुस्तजा, एक है मस्जिद हराम और मदीने में जबल उहद है जहां दुआ कबूल होती है। बकी शरीफ में दुआ कबूल होती है और रोज़े रसूल पे दुआ कबूल ना हो तो कहां दुआ कबूल होगी? और ये कहा उसके बाद लिखा जिनके पास पैसे नहीं है वो मदीना कैसे जाए, वो अरफात कैसे जाए, वो मुज़दलिफा कैसे जाए? गरीब नवाज ने हम गरीबों का ख्याल करते, आला हजरत ने हम गरीबों का ख्याल करते हुए कहा कि एक मकाम का इजाफा मैं इसमें और करता हूं। 28 मकामात मेरे वालिद ने दर्ज किए और 29वीं जगह मैं उसमें इजाफा करता हूं कि हिंदुस्तान में वो रोज़े गरीब नवाज है जहां दुआ कबूल होती ही होती है। ये तजर्बा मुझे भी है, आपको भी है, सारे हिंदुस्तानी को है। जो दुआ कहीं कबूल ना हो वो रोज़े गरीब नवाज के करीब दुआ कबूल हो जाती है। 1 लाख मनक़बत एक तरफ, अहमद रज़ा का एक जुमला एक तरफ। तुमने कैसे बोला कि उसने ऐसा नहीं लिखा है? वो तो 1 करोड़ की बात लिख दी है, 1 करोड़ फतवा पे भारी फतवा दे दिया है। रोज़े गरीब नवाज के करीब जो दुआ करे वो दुआ कबूल होती ही होती है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ इल्म गैब पर किताब नहीं लिखी है गरीब नवाज ने, इल्म गैब पर किताब नहीं लिखी है गरीब नवाज ने। मैं अजमेर जाऊंगा, मुरादें पूरी करूंगा, मगर मुनाजरा होगा इल्म गैब के उन्वान पे हॉलैंड में, तो किताब कहां से जाएगी? मुनाजरे में किताब नहीं होता है, मुनाजरे में किताबों की दलील दी जाती है। मुनाजरा मैदान जंग है, उसके लिए हथियार चाहिए, वो हथियार किताब है जिससे मुनाजरा जीता जाता है। इल्म गैब पे मुनाजरा हो ऑस्ट्रेलिया में, हथियार कहां से जाएगा? हथियार मखदूम बिहारी के यहाँ से जाएगा? नहीं नहीं, वहां जाएंगे दुआ करेंगे दुआ कबूल होगी। हथियार अजमेर से जाएगा? नहीं नहीं, अजमेर जाएंगे बस सुल्तानुल हिंद है वहां दुआ करेंगे। पर हथियार बन के अब्दौलतुल मक्किया नामी किताब वो अहमद रज़ा की लाइब्रेरी से जाएगी, वो हथियार वहां जाएगी। बशरियत और नूरानियत के उन्वान पे मुनाजरा श्रीलंका में होगा, किताब अहमद रज़ा की जाएगी। मुनाजरा हुजूर को तसर्रुफात करने की सलाहियत है या नहीं है, वो मुनाजरा इस टॉपिक पे अमेरिका में होगा, किताब अहमद रज़ा की लिखी हुई जाएगी। तो जब तक ये फितरे वहाबियत रहेगा और जब तक रज़ा की किताब से मुनाजरा जीता जाता रहेगा, उस वक्त तक डंका खाने और तोन ऊंचा करने वाले का नहीं बजेगा। जब तक ये हथियार रहेगा रज़ा आला हज़रत, डंका आला हज़रत का बजता रहेगा। जो हजरों ने 1000 के करीब किताबें छोड़ी, हथियार दिया है, और जिनका हथियार से मैं जंग जीतता हूँ, डंका रज़ा का बजेगा, ना के खाने और सोने वाले का बजेगा। इसे बहुत सारे जाहिल मुजाबिर और जाहिल सजादगार वो अपने बाप का नाम नहीं सुनते हैं, तिल मिला जाते हैं। तू खाता है, तेरा बाप खाया था और फिर वो अपने खानका में मर गया, सो गया। रज़ा खाया नहीं है, वो 24 घंटे में 2 घंटे सोता था। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी निचोड़ के रखी, रोजाना एक किताबें लिखता था कि वो इंतकाल कर भी गए तो उनकी किताबों से करोड़ों को जिंदगी और रोशनी मिलती रहेगी। तो जिसकी किताबों से दीन का काम हो रहा है तो अल्लाह का वादा है, फ़इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम, अगर तुमने अल्लाह के दीन की मदद की तो अल्लाह तेरी मदद करेगा। जो अल्लाह के दीन का काम करता है अल्लाह उसे सौदागरान से उठा के इज्जत के आसमान पे पहुंचा देगा। दीन का काम जो भी करेगा अल्लाह उसे इज्जत देगा। ये इस टॉपिक को मैं यही विराम देता हूँ, अब मैं आगे बढ़ता हूँ। खूब हमारे बच्चों ने देख लिया, हमारा टॉपिक है कुरान करीम की आयतों को पढ़ना, उसमें गौर फिक्र करना, लेकिन तमहीद ही मेरी इतनी लंबी हो जाती है कभी कभी मैं असल टॉपिक पे बोल ही नहीं पाता हूँ। मैंने सोचा था कि कुरान करीम की 2-4 आयतों की मैं तिलावत करूँ, उसमें तदब्बुर करो, गौर फिक्र करो, इन आयतों से हिदायत का नूर हासिल करो। किस तरीके से कुरान इल्म हिकमत का भंडार, इल्म हिकमत का खजाना है।
किस कदर कुरान करीम की तिलावत से रूह को तक़वियत मिलती है, सीने को रोशनी मिलती है और जिंदगी गुजारने का एक सलीका मिलता है। इसमें मैं तो 4-5 आयतों की तिलावत करना चाहता था। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं नहीं 4 नहीं 5 कम से कम एक ही आयत की मैं तिलावत कर दूं, ताकि पता तो चल जाए कि कुरान करीम में कौन कौन से हक़ाइक़ मौजूद हैं। और क़यामत आ जाएगी, दुनिया की सारी ताक़ूती ताकतें मिलकर कुरान मिटाने के लिए एक प्लेटफॉर्म पर आ जाएंगी, फिर भी वह कुरान करीम के बढ़ते हुए कदम को रोक नहीं पाएंगी। कुरान करीम इस तहकीकी दुनिया में, यानी साइंस की दुनिया में, इस कदर साइंसदानों की तहकीक का मौजू बना हुआ है कि जो करीब से कुरान पढ़ता है उसका सीना हिल के रह जाता है। कुरान करीम का मुताला करने वाला जो भी मुताला करता है उसकी आंखें टपटपा जाती है, उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कुरान का मतलब ही है वो किताब जो लोगों को बुलंद कर देती है। कुरान से जो अच्छा सलूक न करे कुरान उसे पस्त कर देता है। हुजूर कहते हैं इन्नल्लाह यरफ़उ बिहाज़ल किताब अक़वामा व यदउ बिही आखरीन। अल्लाह इस किताब के जरिए कुछ लोगों को बुलंद कर देता है और कुछ लोगों को पस्त कर देता है। और अल्लाह ने दिखा दिया, जो बकरी के चराने वाले थे अरब के, जो खाना बदोश जो अपने कांधे पे घर लेके चलने वाले थे, जिनके पास न दुनियावी दौलत थी, खाने पीने का जरिया भी नहीं था, लेकिन उन लोगों ने जब मुस्तफा का साथ दिया, हुजूर पर ईमान लाए, कुरान करीम को सीने से लगाया, कुरान पाक को पढ़ा, उस पर गौर किया, अपनी जिंदगी में कुरान की तालीमात को उतारा और फिर दुनिया में फैल गए पुरानी हुकूमत कायम करने, पुरानी निज़ाम की तबलीग के लिए फैल गए। अल्लाह ने ईरान उनको दे दिया, अल्लाह ने मुल्क शाम उनको दे दिया, अल्लाह ने मिस्र उनको दे दिया, अल्लाह ने उसके लिए रूम की जमीन हमवार कर दी। अल्लाह ने उन लोगों को हिंदुस्तान जैसा मुल्क अता कर दिया। जब मोहम्मद इब्न कासिम 99 हिजरी में हिंदुस्तान का रुख करते हैं तो 1000 साल तक हिंदुस्तान की जमीन, वो महान पुराना हिंदुस्तान जिसमें पाकिस्तान भी था, जिसमें बांग्लादेश भी था, जिसमें श्रीलंका का कुछ हिस्सा भी था, जिसमें बर्मा का हिस्सा भी था, जिसकी आखिरी सरहदें अफगानिस्तान के समरकंद और बुखारा तक मिलती थी, महान विशाल हिंदुस्तान, वह हिंदुस्तान मोहम्मद इब्न कासिम ने कदम रखा। राजा दाहिर जुल्म कर रहा था, मुसलमानों की एक बेटी ने आवाज दी, कत्ल की थी उन्होंने अरबिस्तान में कि मेरे भाई मुझे बचाओ, मुझको तंग किया जा रहा है। अपनी बहन अगर की इज्जत लुटती रहे, आज बच्चे देखते नहीं है कि उनका हाथ नहीं पकड़ते, मदद नहीं करते। इस्लामी बहन कहाँ भाई अरब में, कहाँ बहन राजा दाहिर की कैद में। मोहम्मद इब्न कासिम 18 साल जवान, वो भी जवान तो था, उनके सीने में भी दुनिया की ख्वाहिशात थी, मगर हमारी ख्वाहिशात कुछ और है, फिल्मी ख्वाहिशात, दुनियावी ख्वाहिशात, जिसने हमारे बदन की सारी एनर्जी को जला के राख कर दिया। मोहम्मद इब्न कासिम 18 साल जवान, नौजवानों की एक टीम तैयार की, बादशाह वक्त से परमिशन लिया, वो वहां से चले हिंदुस्तान की तरफ। हिंदुस्तान में कटी हुई राहों, संगलाख रास्तों को पार करता हिंदुस्तान आया। इरादा नेक था, मेरी बहन उस जालिम के कैद खाने में है, उसको आजाद करवाना है। उस बहन ने मुझको आवाज दिया है, वो अपनी हकीकी बहन नहीं, वो बहन इस्लामी बहन थी, कलमा पढ़ने वाली बहन थी, उसने आवाज दी थी मेरी आबरू को बचाओ। मोहम्मद इब्न कासिम नौजवानों की टीम लेके हिंदुस्तान के सिंध आ गए। अब समझ में नहीं आ रहा था कि राजा दाहिर की फौज से कैसे टकराऊं, लाखों की तादाद में फौज है, इधर मुट्ठी भर जवानों की एक छोटी सी टीम है, कैसे टकराए। इसी सोच और फिक्र में थे, चूंकि इरादा नेक था, कदम बढ़ा दिया था। जो अल्लाह का नाम लेके अच्छे इरादे से कदम बढ़ा दे, अल्लाह की मदद उनका इस्तेमाल करती है। आप पहले आगे बढ़ के तो देखें, आप बोल के तो देखें, आप घर से निकल के तो देखें। हम तंग नजर हो गए, हम बुज़दिल हो गए, हम कामचोर हो गए, हम बीवी बच्चे अपने घर मकान से ऊपर उठकर कुछ नहीं सोचते हैं। नतीजे में अल्लाह की मदद हमसे रुखसत हो गई, हम जलील हो गए अपने घर में। खाते खाते मर रहा है कोई, साहब घर में खेती बाड़ी करते करते मर रहा है कोई, बेकसी के आलम में मर रहा है कोई, शादी की पार्टी में नाचते नाचते मर रहा है। मरना तो सबको है, अपने लिए मरना और है, दीन के लिए मरना और है, नाचते नाचते मरना और है, कुरान पढ़ते पढ़ते मरना और है, डांस की महफिल में मरना और है, सीरत के जलसों में मरना और है, एक्सीडेंट करके मरना और है, हालत सजदा में मरना और है, शराब पीते पीते मरना और है, जिक्र इलाही करते करते मरना और है। अगर दुनिया दुनिया करता रहा मर गया तो सीधे जहन्नम पहुंचा, और अल्लाह अल्लाह करता रहा मौत आ गई तो
सीधे जन्नत पहुंच गया। इसलिए हमें जब मौत इतनी सस्ती हो गई है कि रास्ता चलते शादी की महफिल में हर जगह पे मौत आ रही है, तो आदमी अपनी दुनियावी मसरूफियात खटा करके कोशिश करे कि नेक काम ज्यादा करे, ताकि मौत आए तो मस्जिद में आए, मौत आए तो जलसे में आए, मौत आए तो कुरान पढ़ते आए, मौत आए तो बच्चों को पढ़ाते आए, मौत आए तो दीन सिखाते सिखाते आए, मौत आए तो जिक्र दुरूद करते हुए आए। इसलिए ज्यादा टाइम मस्जिद में, ज्यादा टाइम मदरसे में, ज्यादा टाइम जलसे में, ज्यादा टाइम रिस्क के हलाल की तलाश में, ज्यादा टाइम अपने बाल बच्चों के दरमियान बैठकर दीनी गुफ्तगू में। क्योंकि आजकल मौत सस्ती हो गई है, कोई बाइक चला रहा है उसी में मर रहा है, कोई नाच रहा है उसी में मर रहा है, कोई गुटखा खाया अंदर नहीं गया उसी में मर रहा है, कोई गोली खा रहा है गोली अंदर नहीं गई उसी में मर रहा है, कोई सो गया सुबह सुबह फिर लाश निकल गई। आज जवान ज्यादा मर रहे हैं, बूढ़े कम मर रहे हैं। इसलिए जवानों को ये कहना कि बुढ़ापे में कोई काम तो नहीं रहेगा, इबादत करेंगे, ये गलत है। क्योंकि आज जवानों की मौत कसरत से हो रही है। तुर्की के मलबे में वह लोग दब गए जो कसरत से जवान थे, जिनकी लाशें सड़ गई। आज तक लाशें सड़ी है, कोई निकालने वाला नहीं है। मुमकिन है कि मैंने कहा था ना कि 25 साल कमाया घर बनाया, डीएम बना छोटा सा घर बनाया, सऊदी अरब गए छोटा सा घर बनाया, 25 साल तकरीर की पैसा मिला 50 लाख का घर बनाया, एक घर बनाया और किसी खबर के वही घर उसके लिए कब्रिस्तान बन जाए, वही उसी घर के मलबे में वो दफन हो जाए। 10-10 मंजिला मकान उन्होंने बनाया था तुर्की वालों ने, खूबसूरत मकान जिसके दरवाजे इतने कितने कीमती के 10-10 लाख रुपए के एक दरवाजे थे। क्या खबर थी वो अपनी कब्र बना रहा है, क्या खबर थी वो अपनी कब्र की तामीर कर रहा है। अल्लाह तबारक व तआला गाहे बगाहे ज़लज़ला भेजकर दूसरे बचे हुए बंदों को डराता है कि जिस जमीन पे गुनाह ज्यादा हो जाता है, जहां पाप ज्यादा होता है, जहां दाढ़ी मुंडाई ज्यादा होती है, जहां औरतों में सेना करवाने का रुझान पैदा होता है, शौहर में दिल नहीं लगता और देवर और समाज के दूसरे छोकरों में दिल लगाती है, वहां ज़लज़ला आता है। जहां मर्द को अपनी बीवी में लज्जत नहीं मिलती, वह दूसरी अपनी साली, अपनी कजिन, अपनी सर बहन और समाज की दूसरी नापाक किस्म की खबीस और खबीसा औरतों को देखकर उसके चेहरे की चमक दमक देखकर माइल होता है, वहां ज़लज़ला आता है। जहां इस्लामबाजी की कैफियत ज्यादा हो वहां ज़लज़ला आता है, जहां सुन्नतों का कत्ल हो वहां ज़लज़ला आता है, जहां लोग पानी कम पिए शराब पिए वहां ज़लज़ला आता है। इसलिए उस ज़लज़ले में जो दबा तो मर गया, जो हालत ईमान में मरा वो तो शहादत की मौत मर गया। क्योंकि आया है किताबों में जो अपने समंदर में सफर करे और मर जाए और डूब के वो शहीद कहलाता है, जो दीवार के मलबे में दब जाए वो शहीद कहलाता है। जो साहिब ईमान थे वो मलबे में दब